દિવસોમાં જે અત્યારે આપણે જે કન્ટેન્ટ જોયો તો એ કન્ટેન્ટનું આપણે ફરીથી એક વખતે ગુજરાતીમાં એક રિવિઝનનું આપણે લઈ લઈએ. આપણે પહેલા દિવસે એ વસ્તુને જોઈ કે શિક્ષા હલો હા, આપણે પહેલા દિવસે એ વસ્તુની જોઈ કે શિક્ષા. તો શિક્ષા શેના માટે? તો શિક્ષા આપણે સમજ્યા કે માનવ એ અત્યારે પોતાના આચરણ હાલના લેવલે જે રીતે હોવું જોઈએ એ રીતે નથી અને વ્યવસ્થામાં નથી. તો એ વસ્તુમાં એનું આચરણ નિશ્ચિત કરવા માટે જે આપણે વ્યવસ્થાને હાલના લેવલે કે જે કહીએ છીએ કે ત્રણ અવસ્થાઓ જે છે માનવ સિવાયની, એ ત્રણ અવસ્થાઓ એમનું આચરણ એ નિશ્ચિત છે. જે માણસનું આચરણ નિશ્ચિત કરવા માટેની એક શિક્ષાની જરૂરિયાત છે. બીજા દિવસે આપણે એ જોયું કે જિંદા રહેના અને જીના. તો જિંદા રહેના અને જીનાના વચ્ચેનો આપણે ડિફરન્સિએશન જોવા ગયા તો આપણને ખબર પડી કે જે સુવિધાના અર્થમાં, જે માનવ શરીરના અર્થમાં જે વસ્તુઓ જોઈએ છે, કે જે વસ્તુઓની જરૂરિયાત છે, કે જે સમયે જોઈએ છે અને જે માત્રામાં જોઈએ છે, એ વસ્તુને આપણે જિંદા રહેમાના મૂકીએ છીએ. અને જે વસ્તુ જે છે, જે આપણને નિરંતર આપણી જરૂરિયાત છે માનવની, અને એ સહજ જરૂરિયાત છે, એ દરેક માનવની એ જરૂરિયાત છે, એને આપણે જીનામાં જોઈએ છે. એને જ્યારે આપણે જીવન ક્રિયા સાથે રિલેટ કરવા જઈએ છીએ, જિંદા રહેના અને જીનાને, તો એ વસ્તુ આપણને દેખાય છે કે જે નીચેનો જે 4.5 ક્રિયાવાળો ડબ્બો છે એ જિંદા રહેના છે, અને જે ઉપરની 5.5 ક્રિયાવાળો જે ડબ્બો છે એ જીનાના કેસમાં આવે છે અત્યારે. એટલે પછી આપણે જિંદા રહેવામાં અને જીનામાં આપણે જે આગળ હજી વાત કરી તો સુખ અને સુવિધા આપણે જે સેપરેશન કર્યું, તો સુખ શું છે આપણે એ સમજ્યા. તો સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही સુખ है, આપણે એવી વસ્તુની એક ડેફિનેશન આપ્યું અને આપણે કીધું કે એ નિયમ જે છે, જે નિયમ આપણા અંદર જાંચવાની વાત થઈ કે ભાઈ એ વસ્તુ બધા માટે વેલિડ છે કે નથી. પછી સમાધાન શું છે? સમાધાન એ જ સુખ છે, એ વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરી. અને સમાધાન, તો સમાધાન એટલે क्यों, कैसे और क्या, क्या, क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है मेरे अंदर जो आ जाता है, તો એ જ વસ્તુ સમાધાન છે. આપણે એ વસ્તુની ચર્ચા કરી. એના પછી આપણે અત્યારે જે આપણી અત્યારે વ્યવસ્થા છે, તો એ વ્યવસ્થાના અંદર ઘૂસ્યા. તો એક તો સ્વયંમાં વ્યવસ્થા, પરિવારમાં વ્યવસ્થા, સમાજમાં વ્યવસ્થા, પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થા અને અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા. તો આપણે સૌથી પહેલાં અત્યારે સ્વયંમાં વ્યવસ્થામાં ગયા. તો સ્વયંમાં વ્યવસ્થાના અંદર આપણે જોયું તો એમાં જીવન ક્રિયાઓ જે અત્યારે સ્વયંમાં વ્યવસ્થાના અંદર આપણે જોયું, તો એના અંદર આપણને એ વસ્તુ દેખાય છે કે ભાઈ હું કોણ છું? તો હું શરીર છું અને હું જીવન છું, અને હું એ બંનેનો માનવ, એઝ અ માનવ હું એ બંનેનો એક સમૂહ છું. તો જ્યારે શરીર છે તો શરીરની આવશ્યકતાઓ અલગ છે, અને જીવન છે તો જીવનની આવશ્યકતાઓ અલગ છે. શરીરની આવશ્યકતાઓ તો એ આપણને ખબર જ છે કે સુવિધાના સ્તર ઉપર આપણે બધા અત્યારે જે જીવી જ રહ્યા છીએ. જ્યારે જીવનની જરૂરિયાતને કે જીવનને સમજવા ગયા, તો જીવનના કેસમાં આપણે જોયું કે જીવનના અંદર 10 ક્રિયાઓ ચાલુ છે. એમાં અત્યારે જે અત્યારે આ સ્તર પર આપણે જીવી રહ્યા છે, મોટાભાગનો અત્યારે વર્ગ જીવી રહ્યો છે, તો એ 4.5 ક્રિયાઓના અંદર જીવી રહ્યો છે. એ 5.5 ક્રિયાઓ જે છે એ માનવમાં હજી એ રીતે આવી જ નથી, અને આપણે એ રીતે એને જીવવાની વાત છે. તો જ્યારે જીનામાં આવશું ત્યારે 5.5 ક્રિયાઓને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એ અડવાની વાત આવશે. હવે આપણે ખાલી એક એને સૂચનાના રીતે આપણે સમજ્યા છીએ. તો એ સમજ્યા એમાં હું અત્યારે 4.5 ક્રિયાઓનું રિપીટ નથી કરતો, પણ ગઈકાલે જે 5.5 ક્રિયાઓ જે ગઈ, તો એ 5.5 ક્રિયાઓમાં જે સમજણ મને છે એ સમજણ હું વ્યક્ત કરું છું. કે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોયું તો તુલનની જે અડધી ક્રિયા છે, તો તુલનની આખી ક્રિયા શું કહે છે કે તુલન તમારું પ્રિય, હિત, લાભ, ન્યાય, ધર્મ અને સત્ય, આ 6ના રેફરન્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે તુલન કરીએ છીએ દર વખતે. તો જ્યારે પ્રિય, હિત અને લાભની વાત છે, તો પ્રિય, હિત, લાભ એ સુવિધાના સ્તર ઉપર અને અત્યારે આપણે જે જીવી રહ્યા છે એના સ્તર ઉપર કોન્સ્ટન્ટલી થઈ જ રહ્યું છે. જ્યારે ન્યાય, ધર્મ, સત્યની વાત આવે છે, તો આપણે ગઈકાલે આપણે એ જોયું કે ન્યાય શું, ધર્મ શું, સત્ય જે આપણે જોયું નથી. તો ન્યાય એ વસ્તુ શું છે કે બે માણસો વચ્ચે કે બે માનવ વચ્ચે અત્યારે જે સંબંધનો નિર્વાહ થઈ રહ્યો છે ને, એ નિર્વાહમાં ઉભય તૃપ્તિ થાય બંને માનવને, તો ન્યાય પ્રમાણિત થયો એવું કહેવાય. બે જગ્યા પર બે માણસો સમજુ નથી, કાં તો એક જ બાજુ સમજણવાળો માણસ અને બીજી બાજુ નથી, તો ન્યાય પ્રમાણિત નહીં થાય. પણ જે માણસ સમજણવાળો છે એ ન્યાયપૂર્વક જીવી શકશે, એમાં ન્યાય પ્રમાણિત નહીં થાય બે બાજુ. એટલે જ્યારે માનવની વાત છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ન્યાયપૂર્વક જીવવાની વાત છે. જ્યારે માનવ પ્રકૃતિની વાત આવે છે ત્યારે માનવ પ્રકૃતિમાં ધર્મપૂર્વક જીવવાની વાત આવે છે. કે આપણે દરેક અવસ્થા જે તો એ દરેક અવસ્થાના ધર્મના સાથે આપણે જ્યારે જીવવાની, એઝ અ માનવ હું
મારી આવશ્યકતાઓ કે મારી જરૂરિયાતો સુવિધાના સ્તર ઉપર કે મારી સુખના સ્તર ઉપર જે પણ છે એ બધી વસ્તુઓની હું જ્યારે મારા અંદર સમીક્ષા કરી શકું છું કે મારી અત્યારે જે રિક્વાયરમેન્ટ જે છે કઈ છે શું છે, અને એને જ્યારે આખી પ્રકૃતિના સ્તર ઉપર જ્યારે હું એ ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને હું રાખી શકું છું ત્યારે એવું કહેવાય છે કે એ ધર્મ દૃષ્ટિથી આપણે જીવીએ છીએ. અને સત્ય દૃષ્ટિની વાત છે તો એ સત્ય દૃષ્ટિ હજી આપણી એ આગળ કન્ટેન્ટમાં આવશે. હવે જે બીજી 5 ક્રિયાઓ ઉપરની છે કે સાક્ષાત્કાર, બોધ, સંકલ્પ, અનુભવ અને પ્રામાણિકતા. તો આ જે 5 ક્રિયાઓ છે તો એનું એક શોર્ટમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સાક્ષાત્કાર કઈ વસ્તુનો થાય તો આપણા ચિત્રણમાં જે વસ્તુઓ આવે છે કે રોજના રોજ આપણે જે વસ્તુઓ જોઈએ છે, સમજીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, બરાબર બોલીએ છીએ, આપણે જે બોલીએ છીએ એ પણ આપણા અંદર ક્યાંક ના ક્યાંક એનું ચિત્રણ પડી રહ્યું છે. તો જે ચિત્રણમાં આવે છે એ ચિત્રણમાંથી અસ્તિત્વ સહજ જે સ્વીકૃતિ વસ્તુઓ છે, સ્વીકૃત વસ્તુઓ, એનો જ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. અને એ જે વસ્તુઓ છે એનું જે આપણે સ્ટોક હાઉસ કહીએ કે એ છે આપણું બોધ. એ બોધના અંદર ક્યાંક ના ક્યાંક જે સ્વીકૃતિઓ આપણા અંદર થતી હોય અને અસ્તિત્વ સહજ હોય એ બધી વસ્તુઓ ક્યાંક એ રીતે જમા થતી જ હોય. આપણે જ્યારે એ નિરંતરતામાં જ્યારે જઈશું ત્યારે આપણે કહી શકશું કે ભાઈ હું બોધપૂર્વક અત્યારે જીવી રહ્યો છું. અને જ્યારે નિરંતરતાને એ બોધપૂર્વક જીવવાની જ્યારે વાત આવશે ત્યારે આપણામાં એ જ સંકલ્પ આવશે અને સંકલ્પના હિસાબથી એ માનવ લક્ષ્યના હિસાબથી આપણે જીવવાનું ધીરે ચાલુ કરીશું કે આપણું અત્યારે ચિત્રણ પણ છે એ ન્યાય ધર્મ દૃષ્ટિમાં આપણું બદલાઈ ગયું હશે. અને જ્યારે ચિત્રણ બદલાશે ત્યારે જ સાક્ષાત્કાર બોધની સ્થિતિ આપણે અનુભવ કરી શકશું. અને ચિત્રણ જ્યારે બદલાશે અને ન્યાય ધર્મ સત્યના હિસાબથી જ્યારે ચિત્રણ થશે ત્યારે એના હિસાબથી જ તમારું તુલન થવા લાગશે. એના હિસાબથી જ આપણો વિચાર કે આપણો જે વિચાર પક્ષ કહીએ છીએ, વિશ્લેષણ કહીએ છીએ એ થશે. એના હિસાબથી જ લક્ષ્યમૂલક એક આપણું આસ્વાદન થવા લાગશે અને એના હિસાબથી આપણો કાર્ય અને વ્યવહાર જે છે એ આપણા અંદર પ્રમાણિત થશે. અને એ સ્તર પછી જે આપણે કહીએ છીએ કે બોધપૂર્વક જીવવામાં એક ક્ષણ આવે છે કે જ્યાં આગળ આપણે આખું અસ્તિત્વ આપણા સામે ખુલી જાય છે અને આપણે જે છે એ બધી જ વસ્તુ આપણે સહજ એ જ રીતે જોઈ શકીએ છીએ, જેને આપણે કહીએ છીએ અનુભવની સ્થિતિ. અને એ અનુભવની સ્થિતિ એક વખત થાય એટલે એ નિરંતર બની રહે છે. એ દરેક અલગ સમયમાં આપણે જે વસ્તુઓ કાર્ય કરતા હોઈએ તો એ બધી વસ્તુઓમાં અલગ રીતે એને આપણે એને ડિફાઇન કરેલું છે જે આગળ કન્ટેન્ટમાં આવશે. અને એ જ વસ્તુને આપણે જ્યારે જીવવામાં આપણે નિરંતર સુખની આપણે જે સ્ટેટ છે એના અંદર આપણે જ્યારે જીવવાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ એ પ્રમાણિત આપણામાં થયું છે. એના પછી આપણે વાત કરી કે સંબંધોમાં વ્યવસ્થા. તો સંબંધોમાં વ્યવસ્થાની જ્યારે વાત કરી તો એઝ અ માનવ મારી અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ્સ કે મારી આવશ્યકતાઓ શું છે. તો સંબંધોમાં મારી જે આવશ્યકતાઓ છે તો એમાં 7 પ્રકારના આપણે જોયું કે એક બાળક છે અને એક વયસ્ક વ્યક્તિ છે. તો એ બંનેની જે જરૂરિયાતો છે કે એના પોષણની કાં તો પછી હું તમને કહું કે સંરક્ષણની, શિક્ષાની જે પણ જરૂરિયાતો છે એ બધી જરૂરિયાતો આજે આપણે આપણા સામે મૂકી દઈએ છીએ તો આપણને દેખાય છે માનવ વચ્ચે 7 સંબંધોની આપણે ગઈકાલે વાત કરી. તો એ 7 સંબંધો જે છે તો 7 સંબંધોમાં આપણે હજી આજે કન્ટેન્ટમાં હજી એના જે મૂલ્યો છે એ મૂલ્યો પર જઈશું એટલે વધારે હજી ક્લેરિટી આવશે. પણ એ 7 સંબંધો જે છે તો એ 7 સંબંધોમાં એક તો માતા પિતા સંતાનના સંબંધની વાત છે, ગુરુ શિષ્ય સંબંધની વાત છે, ત્રીજું કે ભાઈ બહેન સંબંધની વાત છે, ચોથું મિત્ર સંબંધની વાત છે, પાંચમું સાથી સહયોગી સંબંધની વાત છે, છઠ્ઠું પતિ પત્ની સંબંધની વાત છે અને એક સાતમું કે જે આપણે વ્યવસ્થામાં જે છીએ તો એ વ્યવસ્થા સાથેના સંબંધની એક વાત છે. માણસ આપણે જોઈએ તો વ્યવસ્થાનો સંબંધને આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોઈએ તો આપણે અત્યારે એવું સમજીએ છીએ કે મારી જે સુવિધાને સ્તર પર અત્યારે કે માનવ સમાજ જે અત્યારે બનેલો છે એના સંદર્ભમાં જે વ્યવસ્થાઓ ઊભી થયેલી છે એ જ વ્યવસ્થા હું અત્યારે સમજી રહ્યો છું. જે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો ગઈકાલે પણ પ્રશ્નો આવ્યા કે ભાઈ એ તો અવ્યવસ્થા છે, આ તો વ્યવસ્થા છે જ નહીં. તો એ વસ્તુ છે કે એ વ્યવસ્થાઓ માનવ સમાજ માટે બનેલી છે પણ એ અવ્યવસ્થાઓ છે. આપણે જે વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ ઓવરઓલ એ માનવ સમાજને એક સ્વરાજ્યના લેવલ ઉપર લઈ જવાની વાત છે એ વ્યવસ્થાની વાત કરીએ છીએ. તો જેમાં દરેક માણસ ક્યાંક ના ક્યાંક એ વ્યવસ્થામાં જોડાયેલો જ છે. એ વ્યવસ્થાના સંબંધની વાત છે અને આજે આપણે લઈશું એ આગળ મૂલ્યો પર આવશે. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો સર છે સત્ય ઉપર થોડું સમજાવી દો ને. नमस्कार. नमस्कार. क्या बोले भैया? न्याय धर्म और सत्य पे फिर से एक बार फिर से थोड़ा समझाओ. अच्छा चलिए, तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि आपकी सभा में से ही कोई न्याय धर्म सत्य पे बोले.
हाँ जी, कोई भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन भी चलता रहे ना, नहीं तो वही हो जाएगा, आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ जी, कोई भी न्याय धर्म सत्य पे, सत्य पे अभी बात नहीं हुई है, न्याय धर्म पे बोलेंगे, अभी सत्य पे बात हुई नहीं है। देखिए, जो हमें पकड़ में आया है उतना तो हम बोल ही सकते हैं, जितना पकड़ में आया उतना तो बोल ही सकते हैं। हाँ जी, प्रिया। बोर्ड पे भी आके देख सकती हो या वहीं से, जैसा ठीक लगे। न्याय में अगर हम मानव मानव संबंध की बात करें, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, क्या ठीक लगेगा आप लोगों को? हिंदी का जो है छू। સુખ જોઈએ છે। હા, ન્યાયમાં આપણે જો એક માણસ અને માણસ વચ્ચેના સંબંધની વાત કરીએ તો કોઈ પણ માણસ માણસ વચ્ચેનો સંબંધ હોય તો એક આમાં સાતમાંથી કોઈ પણ સંબંધ હોય તો એમાં બંને પક્ષ તરફથી કંઈ ના કંઈક અપેક્ષાઓ હોય કે હું એક દીકરી છું અને મારા પેરેન્ટ્સ છે તો મને એમનાથી કંઈક અપેક્ષા હોય અને એમને મારાથી કંઈક અપેક્ષા હોય। તો જો આપણે વ્યવસ્થાના અર્થમાં હોઈએ તો અહીંયા સંબંધની પહેલાં પરિભાષા કીધી કે સંબંધમાં અપેક્ષાઓ પહેલેથી નિશ્ચિત છે। माइक और करीब। हाँ। તો આપણે જો વ્યવસ્થાના અર્થમાં જોઈએ તો દરેક સંબંધ નિશ્ચિત છે, દરેક સંબંધની એક અપેક્ષાઓ પહેલેથી હોય જ છે કે માતા પિતાએ શું કરવું અને સંતાને માતા પિતા પ્રત્યેની શું અપેક્ષા છે। તો જો એ અપેક્ષા એ જે પણ મૂલ્ય છે એનું નિર્વાહ થાય બંને તરફથી અને બંનેને સેટિસ્ફેક્શન થાય, તૃપ્તિ થાય કે મેં જે કર્યું મેં અપેક્ષાની પૂર્તિ કરીને સામેવાળાને પણ થાય કે મેં અપેક્ષાની પૂર્તિ કરી, તો ઉભય તૃપ્તિ થાય, મ્યુચ્યુઅલ ફુલફિલમેન્ટ। તો આને આપણે ન્યાય કહી શકીએ, માનવ માનવ સંબંધનો। તો આ ન્યાય દ્રષ્ટિ થઈ। અને ધર્મ દ્રષ્ટિની વાત કરીએ તો માનવ જ્ઞાન અવસ્થા છે તો એના સિવાયની જે બાકીની ત્રણ અવસ્થા છે એનો આપણે ધર્મ એટલે એ આમાં ધર્મ કીધું છે કે जिससे अलग नहीं किया जा सकता। તો બાકીની ત્રણ અવસ્થાનો જે ધર્મ છે આપણે એ ધર્મને જાળવી રાખીને એ વ્યવસ્થાના અર્થમાં જો વિચારીને આપણે કંઈ પણ એક્શન લઈએ તો એ ધર્મ દ્રષ્ટિ થઈ। તો અત્યારે આપણે સુવિધાના અર્થમાં વિચારી રહ્યા છીએ ને એટલે જે પ્રકૃતિને એના ધર્મ ઓળખ્યો નથી એટલે આપણે આપણા સુખ માટે પ્રકૃતિને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ। જો ધર્મ દ્રષ્ટિ થઈ જાય આપણી તો પ્રકૃતિને નુકસાન ના પહોંચે એ રીતે જ આપણે વિચારવા માંડીએ અને એનો ધર્મ જાળવી રાખે, પ્રાણ અવસ્થા, પદાર્થ અવસ્થા અને જીવ અવસ્થા, તો એને આપણે નુકસાન ના પહોંચાડીએ ધર્મ દ્રષ્ટિ હોય તો। અને સત્ય દ્રષ્ટિમાં આખા વાસ્તવિકતાને સમજવાની વાત છે કે सत्य पे भी बात हुआ नहीं है। હા, તો એ આગળ આવશે સત્ય દ્રષ્ટિનું। बढ़िया, Thank बहुत अच्छा। और कोई? और कोई? हाँ भैया, हो गया? प्रिया ने जो कहा वो उससे संतुष्टि? अच्छा, तो अभी इसमें पूरा तब और पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि जो न्याय है तो न्याय में क्या बोल रहे हैं कि मानव और मानव के बीच में संबंध है और मानव और प्रकृति के बीच में भी संबंध है। ठीक है, तो जो संबंध है उसमें अपेक्षा है, उस अपेक्षा को मूल्य बोल रहे हैं। तो अभी जब मूल्य पे चर्चा हो जाएगी तब निर्वाह की बात आएगी तो न्याय और स्पष्ट होगा
अभी तो इतना बोल सकते हैं कि अपेक्षा है और नेचुरली है, मतलब हम अपेक्षा है ही नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। माँ अपने बच्चे की सुविधा के लिए कुछ करती है और उसकी जिम्मेदारी के भाव के साथ होती है। बदले में क्या चाहती है? बदले में चाहती है कि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ को भूल न जाए, मुस्कुरा दे, हंस दे, तो माँ के लिए एक मुस्कुराहट ही पर्याप्त हो जाता है। दिन भर काम करने के बाद, सारी सुविधा की जिम्मेदारी लेने के बाद, उस भाव में रहने के बाद भी माँ आपसे वस्तु रूप में नहीं चाह रही, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो ये अपेक्षा है उसकी। तो ये अपेक्षा है, रहेगी। अब माँ इस अपेक्षा से मुक्त नहीं हो सकती और बच्चा भी इस अपेक्षा से मुक्त नहीं हो सकता कि माँ मेरे सुविधा की जिम्मेदारी ले। देखिए, सुविधा दे वो अलग, सुविधा देना मुद्दा नहीं है कि माँ मुझे खाना दे रही है, माँ मुझे कपड़ा दे रही है, माँ मेरे सोने का इंतजाम, वो मुद्दा नहीं है, उस जिम्मेदारी के भाव के साथ है। अब घर में सारी सुविधा है, माँ दे भी रही है, लेकिन अगर किसी संतान को लग रहा है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, मतलब उसका ध्यान कहीं और है। सुविधा तो सब है, मिल तो रहा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, तो बच्चे को ही अटपटा लगेगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो बच्चे को अटपटा लगेगा। तो मूल रूप में क्या चीज है? वो भाव है, मूल में वस्तु नहीं है, वो भाव है जो जिम्मेदारी का है। ऐसे ही पिता मतलब महिला पुरुष नहीं, जो भी जीवन की जिम्मेदारी लेता हो, जीवन के जागृति की, जीवन को समझदार बनाने की जिम्मेदारी के साथ होता हो कि मैं आपके शिक्षा संस्कार के लिए आपकी व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ हूं, तो ये जिम्मेदारी का भाव होता है, उसके बाद जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी का भाव है कि नहीं है, वो पकड़ में आता है। वस्तु चाहे जितना भी हो, अगर वो भाव नहीं है तो वस्तु उतना सुख, वस्तु से उतना हमको लगाव नहीं हो पाता अगर भाव नहीं है। बोलते हैं ना, मतलब खाना खिलाया लेकिन इज्जत नहीं किया, माँ ने खाना दिया लेकिन प्यार नहीं किया। अरे खाना तो दिया, आपको खाना से मतलब नहीं जी, प्यार नहीं किया। तो खाना चाहिए, प्यार से चाहिए। आप शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, मतलब कोई पुरुष आ रहा है या कोई महिला आ रही है, अब शाम को भूख लगी है, गेट खुल रहा है, आप अंदर आ रहे हैं, हाँ जी बताओ भूख लगी है, ठीक है उधर रखा, जाओ खा लो। वहां रख दिया, जाओ खा लो। अब खाना भी है, आपको भूख भी लगी है, लेकिन जो भाव है वो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है। क्या चीज स्वीकार नहीं हो रहा है? वो भाव नहीं स्वीकार हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिना खाए सो जाते हैं, जबकि भूख थी। जाने दो, तुम्हारा नहीं खाना। ऐसे कोई खाना खिलाता है? जाओ खा लो, रखा है, कोई हम जानवर हैं? ऐसा बोल देते हैं। तो क्या चीज है? भाव स्वीकृत नहीं हो रहा। तो जो न्याय है उसमें भाव की स्वीकृति है, वस्तु की स्वीकृति की बात ही नहीं है। देखिए, अगर घर में माँ इस जिम्मेदारी के साथ है कि मेरे बच्चे को, मेरे संतान को शरीर का पोषण होना चाहिए और वो बीमार है, बिस्तर पर है, वो बच्चा स्वयं ही खाना बना रहा है, खा रहा है, वो संतान स्वयं ही खाना बना रहा, खा रहा है, लेकिन माँ पूछती खा लिए, क्या बनाए थे, अच्छा बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ज्यादा मसाला तो नहीं डाल दिए थे। तो क्या है, अभी भी माँ बिस्तर पे है, बीमार है, फिर भी उस जिम्मेदारी के साथ है। पोषण हुआ कि नहीं हुआ? तो मुद्दा ये नहीं है शरीर रूप में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी हम ज्यादा चीजें लाके शरीर पे टिका रहे हैं। मुद्दा वो भाव है, वो जिम्मेदारी का भाव। पति पत्नी
संबंध है और वो दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब इतना हिल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, तो आप घर में देखे होंगे जिनके घर में बुजुर्ग हैं, अगर चाय देने जाते हैं अपने बुजुर्ग पिता या बाबा जिसके पास, तो चाय जब देते हैं तो बोलते हैं अपनी दादी को दिए। दादी के पास ले जाते हैं, अगर एक पास नहीं बैठे हैं लोग तो दादी को ले जाके चाय बोलते हैं तो बोलते हैं बाबा को दिए। अब क्या है, वो चाय नहीं दे रही है लेकिन वो जिम्मेदारी का भाव है। तो एक्चुअली भाव ही हमें स्वीकृत होता है, भाव की स्वीकृति ही न्याय है। दोनों को स्वीकृत होता है तो न्याय है, मतलब उभय तृप्ति है। दोनों को नहीं स्वीकृत होता है तो एक तो अपनी, मान लीजिए मैं समझदार हो गया, मैं भाव के साथ हूं और मैं भाव के साथ व्यक्त होता हूं, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ हूं। अब दूसरे को भाव पहचान में नहीं आता, वो स्वीकार नहीं पा रहा है, तो कम से कम मैं तो तृप्त हूं। दूसरा भी जब पहचान लेगा तो उभय तृप्ति हो जाएगी। भाई ऐसा थोड़ी है हम ही केवल पहचान पाएंगे, वो भी पहचान ही लेगा। ऐसे शिविर में आके बैठेगा, ऐसे चर्चा करेगा, अध्ययन करेगा, पहचान ही लेगा। क्योंकि जीवन तो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और सभी का है। कौन जल्दी समझेगा, पुरुष या महिला? शिवांश, कौन जल्दी समझेगा, पुरुष या महिला? जो ध्यान देगा वो। हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया। जो ध्यान देगा वो समझेगा। ये हमारी आशा की किरण है कि ये बच्चे को पकड़ में आती है बात। तो मुद्दा ही नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, गरीब है कि अमीर है, हिंदू है कि मुस्लिम है, गांव वाला है कि शहर वाला है, ठीक है, इस जाति वाला है कि उस जाति वाला, डॉक्टर है कि स्टूडेंट है, मुद्दा ही नहीं है। जो ध्यान देगा वो समझेगा, क्योंकि सभी के पास अक्षय बल अक्षय शक्ति है। तो चाहे जितना अवसर उपलब्ध हो जाए, 100 शिविर हो जाएं विसनगर में, और आपका ध्यान नहीं है तो क्या होगा? वही करेंगे, खाना पीना। भाई हमारा ध्यान खाने पीने पे ही है तो हम खाना पीना ही करेंगे। खाना पीना सोना दौड़ना भागना, खाना पीना सोना दौड़ना भागना, उसी को बोला आहार निद्रा भय प्रजनन। तो ध्यान देगा तो वो समझेगा, ये मुद्दा ही नहीं है पुरुष है कि महिला है, बच्चा है कि बूढ़ा है। शिवांश जल्दी समझेंगे या पोषक भाई जल्दी समझेंगे? तो ये नहीं बोल रहा शिवांश पहले समझे, बोल रहा जो ध्यान देगा वो समझेंगे। तो आगे से अगर पोषक भाई और ध्यान दे देंगे तो इनसे जल्दी समझ जाएंगे। तो यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात क्या है? समझदारी के यात्रा में कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जिसके साथ जी रहा हूं वो भी समझदार हो जाए, और हमसे पहले हो जाए तो और अच्छा है। हाँ जी, हमसे पहले हो जाए और अच्छा है, हमारा जीना कम से कम थोड़ा ठीक रहेगा। तो समझदारी के रास्ते में बहुत स्कोप है, कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, इसमें सब सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का। सुविधा के रास्ते में कंपटीशन है, मुझसे ज्यादा आपके पास ना हो जाए, नहीं तो आप सीना चौड़ा करके हमको दिखाओगे। आप चमकाओगे, दिखाओगे, हमें डराओगे। इसलिए सुविधा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां कंपटीशन है। समझ के क्षेत्र में कोई कंपटीशन नहीं। सब चाहते हैं कि मैं जिसके साथ जी रहा हूं वो समझदार हो जाए। इसीलिए जो लोग शिविर में आकर के बैठते हैं उनको लगता है बात तो अच्छी है, मेरी पत्नी को मिल जाए तो अच्छा है। पत्नी को लगता है हाँ बात तो अच्छी है, पति को मिल जाए तो अच्छा है, उनको ज्यादा इसकी जरूरत है। क्यों दीदी? शिविर में लोग बोलते भी हैं
जैसे दिल्ली में प्रिंसिपल लोग शिविर में आते हैं तो सर्कुलर में थोड़ी लिखा रहता है सपरिवार आइए। तो अगर 80-90 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, तो उसमें 50 महिलाएं होती, 50 पुरुष होते हैं। तो वो महिलाएं जो बहनें वहां करके कहती हैं मेरे पति को इसकी ज्यादा जरूरत है पुरुष हैं वो बोलते हैं मेरे पत्नी को ज्यादा जरूरत है, मेरे बच्चे को ज्यादा जरूरत है। तो हम बोलते हैं आप समझ गए? बोले नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी को ज्यादा जरूरत है। हम बोलते हैं जी आप समझ गए? ओह आप नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं वो तो ठीक है, मैं तो हूं ही, मेरे पति को जरूरत है। तो अपने पे ध्यान ही नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि मैं जिसके साथ जीता हूं वो सभी समझदार हो जाएं और जिम्मेदार हो जाएं। इसलिए बोल रहा हूं इसमें स्कोप ही स्कोप है, कोई कंपटीशन नहीं। कोई भी इसमें फर्स्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है और समझ के क्षेत्र में श्रेष्ठता स्वीकार होती है, सुविधा के क्षेत्र में श्रेष्ठता स्वीकार नहीं होती, क्योंकि सुविधा के आधार पे भेद होता है। तो सुविधा के आधार पे ईर्ष्या पैदा होती है, सम्मान नहीं पैदा होता। तो हमको लगता है मेरे पास सुविधा ज्यादा हो जाएगी, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं आपसे ईर्ष्या बढ़ती है, आपके प्रति सम्मान नहीं बढ़ता। तो जो 4 चीजें हैं रूप पद धन बल, ये ईर्ष्या बढ़ाने वाली चीजें हैं, सम्मान बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। किसी का रूप अच्छा है मतलब मैं तो कह रहा हूं सबका ही रूप अच्छा है, लेकिन आपको लगता नहीं जी ये वाला रूप अच्छा होता है जिसमें ये कलर हो, ये वाली कटिंग हो, नाक ऐसी हो, आंख ऐसी हो, कान ऐसा हो, वो वाला रूप सुंदर होता है। आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति, उस पुरुष महिला के प्रति सम्मान आता है कि अंदर से ईर्ष्या आती है? तो आप जांच के देखेंगे तो ईर्ष्या ही होती है। आप भी ब्यूटी पार्लर का पता ढूंढना शुरू कर देते हैं बताओ कहाँ है, कहाँ होगा, कैसे होगा कौन वाला क्रीम लगाई थी? तब तक टीवी में आके कोई बता ही देता है कि ये वाला लगाए थे और 14 दिन में ही हो जाता है, कलर बदल जाता है तो भैंस को लगा के देखो तो कुल मिला के रूप के क्षेत्र में जाते हैं तो इसका बाजार बढ़ाते हैं हम, इसका मार्केट क्रिएट होता है, बाजार बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है। और बहुत सारी घटनाएं आपने सुना है, रूप को देख करके इतनी ईर्ष्या हुई कि अब तो घटनाएं कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध लग गए। पीछे आपने सुना होगा लोग चेहरे पे एसिड फेंक देते थे, रूप को लेके ईर्ष्या हो गया। पद को लेके ईर्ष्या हो जाता है। आपके गांव में कोई आईएएस हो गया तो आपके घर वाले बार बार बोलते हैं देखो तुम क्या करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, बताओ पढ़े रहते हो, देखो उनका बेटा आईएएस हो गया। तो आपके अंदर क्या आता है? उस आईएएस के प्रति सम्मान आता है कि ईर्ष्या आती है तो एक्चुअली ये सारा ईर्ष्या बढ़ाने वाली चीजें हैं और हम इसी में लगे हुए हैं। तो हम अपने आसपास संबंध नहीं खड़ा कर रहे हैं, अगर इसमें लगे हैं हम अपने आसपास हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग खड़े कर रहे हैं। और अगर ये है, ये भी ऐश्वर्य है भाई, रूप तो सबके पास है ही, इतना सुंदर रूप है कि मानव कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र इकाई है, अपने आप में इतनी सुंदर इकाई है, तो रूप तो सबके पास है ही। अगर पद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, धन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मानव अच्छे हैं तो आप रूप पद धन बल का सदुपयोग करते हैं। तो रूप का सदुपयोग सचरित्रता से होता है, पद का सदुपयोग उदारता से होता है, धन का सदुपयोग भी उदारता से होता है और बल का सदुपयोग दयापूर्वक जी के होता है। तो ये ऐश्वर्य है, ये होना है, कोई
मतलब ये बुरी चीज नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा ये आप इसको बुरी चीज बता रहे हैं। तो मैं इसको बुरी चीज नहीं बता रहा हूं। अगर समझ नहीं है तो आप इसको कहां लगाते हो? आप इसको ईर्ष्यालु लोगों को खड़े करने में लगाते हो। समझ है तो आप इसका सदुपयोग करते हैं, बढ़िया जी करके इसका सदुपयोग करते हैं। धन का सदुपयोग करते हैं तो उदारता पूर्वक, पद का सदुपयोग करते हैं व्यवस्था पूर्वक, या उदारता उसमें भी शामिल ही है। बल का सदुपयोग दया पूर्वक। कोई बलशाली है तो उसका आभूषण क्या है? दया। कोई रूपवान है, उसका आभूषण क्या है? उसका चरित्र। आगे चरित्र क्या होता आएगा। जब हम चरित्र कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? तो रूप, पद, धन, बल ये ऐश्वर्य बताए गए हैं मानव के, और इसमें एक ऐश्वर्य और बताया गया है, बुद्धि। ये अपने शास्त्रों में लिखा है कि मानव के 5 ऐश्वर्य हैं, रूप, पद, धन, बल और बुद्धि। अगर बुद्धि एक्टिवेट नहीं हुई, बोध नहीं हुआ, स्वीकृतियों का स्टॉक हाउस आपका पूरा नहीं हुआ, तो आप रूप, पद, धन, बल का दुरुपयोग ही करेंगे। तो इसमें एक्चुअली एक ही ऐश्वर्य महत्वपूर्ण है, बुद्धि। उसको एक्टिव करना, वो एक्टिव नहीं है तो फिर रूप, पद, धन, बल अलग दिशा में जाता है। तो क्या पकड़ में आया? पहले दिन से इस सभा में जितनी भी बातें की गई, उन बातों में कोई भी चीज को खराब नहीं बताया गया। इस सभा में कहा गया कि आप आहार, निद्रा, भय, प्रजनन को ही सब कुछ मान के जीते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आहार, निद्रा, भय, प्रजनन खराब चीज है। आहार चाहिए ही चाहिए, शरीर जिंदा कैसे रहेगा? निद्रा मतलब आराम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो शरीर आगे काम कैसे करेगा? भय, भय क्या चीज है? तो भय मेरे में एक स्थिति है जो मेरे में बनी रहती है, तो मैं सुरक्षा के उपाय कुछ करता हूं। जैसे बारिश में नहीं निकलता, बाढ़ आ गई तो उसमें नहीं जाता बहने के लिए। अब नदी का प्रवाह बहुत तेज है और मैं कह रहा हूं जी मुझे कोई भय नहीं है, मैं जागृत हो गया हूं, तो जाइए। तो फिर जीवन ही बचेगा, शरीर तो नहीं बचेगा। तो भय भी एक व्यवस्था के रूप में है। नियंत्रण है तो भय एक व्यवस्था है, नहीं नियंत्रण है तो भय एक अभाव है। प्रजनन या मैथुन ये व्यवस्था है अस्तित्व में। मानव और मानव का शरीर परंपरा बना रहे, इसके लिए एक व्यवस्था है। शरीर में 2 आवश्यकताएं होती हैं, एक होती है यौन पीड़ा और दूसरी होती मानवीय परंपरा शरीर पे बनी, धरती पे बनी रहे। इन दोनों के लिए मैथुन या प्रजनन एक आवश्यकता है। तो क्या हुआ? आहार, निद्रा, भय, प्रजनन ये खराब चीज नहीं है, ये व्यवस्था के अर्थ में है। हमने सब कुछ यही मान लिया और इससे सुखी होने के प्रयास में लग गए, इसमें बहुभोग अतिभोग में चले गए। ये रॉन्ग नंबर हो गया, ये खराब नहीं है। तो जैसे ही आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में हम को सब कुछ मान लेते हैं और सुख में इससे सुख खोजने लगते हैं, तो गड़बड़ क्या होती है? अगर इन चारों में हमने सुख को पहचान लिया और हमें लगता सुख यही है, इससे ही मिलेगा, तो इसकी वैरायटी और क्वांटिटी में जाते हैं, बहुभोग अतिभोग करते हैं, तो गड़बड़ क्या होता है? गड़बड़ क्या होता है? गड़बड़ ये होता है, यही 4 हमको अपराध में लेके जाते हैं। अभी धरती पे मानव के साथ या प्रकृति के साथ जितने भी अपराध हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में ही हो रहे हैं, क्योंकि हम इसकी वैरायटी क्वांटिटी में जा रहे हैं। हमको लगता है वैरायटी में जाएंगे, अलग अलग चीज, अलग अलग तरह का खाएंगे, अलग अलग तरह का भोग, अलग अलग तरह की चीजें, तो हमारा सुख बढ़ जाएगा, तो हम वैरायटी में जाते हैं। ज्यादा खाएंगे, ये काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा देर तक सोएंगे, ज्यादा बढ़िया से पड़े रहेंगे बिस्तर पे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हम क्या गए? क्वांटिटी में गए और वैरायटी में गए। तो खतरा क्या है?
ये आहार निद्रा भय प्रजनन खराब चीज नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में है। इससे सुखी होने के प्रयास में लगेंगे तो इसके बहुभोग अतिभोग में जाएंगे, उससे धरती पे अपराध में जाएंगे। मानव के साथ भी अपराध होगा, प्रकृति के साथ भी अपराध होगा। और आज जितने प्रकार के अपराध हो रहे हैं आप उसको कनेक्ट करिए, इन्हीं चार में से किसी न किसी में हो रहे हैं, किसी के चक्कर में हो रहे हैं। मिट्टी खराब हो गई आहार के चक्कर में, आहार की वैरायटी के चक्कर में, ज्यादा खाने के चक्कर में। ज्यादा खाना है, ज्यादा खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो अभी कार्यक्रम क्या है? ज्यादा खाना, फिर बीमार होना, हॉस्पिटल जाना, दवाई खाना, फिर वहां से आना, फिर ज्यादा खाना, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर दवाई खाना, फिर वहां से आना, फिर ज्यादा खाना। हाँ जी, माइक दे दो भाई। हेलो जी भैया, भय एक भाव है ना वैसे तो, मतलब नेगेटिव, लेकिन तो हाँ, अगर जैसे मेरे अंदर अगर देखेंगे तो, मेरे अंदर अगर देखेंगे तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था है का मतलब कि शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए जो नहीं करना है उसका ध्यान रहना, ये भय इसको बोल रहे हैं। लेकिन जब हम भय को अपना विषय मान लेते हैं तो फिर हम कुछ खोजने लगते हैं, मतलब हम फिर अभाव में आ जाते हैं। मतलब जब इसको विषय मान लेते हैं तो इस यही असुरक्षा में बदल जाता है, तो हम असुरक्षा के भाव में आ जाते हैं। तो जैसे भय की अगर बात करें तो मतलब भय को फील करना, तो वैसे उसको हम सुख दुख में मतलब कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं? जैसे क्या प्रश्न कल हम लोग जब ये गोष्ठी कर रहे थे तो एक प्रश्न आया था हाँ कि जैसे मैं तीसरे माले पे हूँ और तीसरे माले की मंजिल पे जैसे आगे कुछ भी नहीं है और मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे भय होता है। हाँ तो मुझे जैसे अगर मैं सुखी, निरंतर सुखी होना चाहता हूँ तो मुझे उस भय से बाहर निकलना होगा। तो हम लोग बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो भय भी एक दुख है, ऐसा ही है क्या? हाँ, तो तीसरे मंजिल पे जाके झांकना क्यों है? जैसे जो मजदूर काम करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, हाँ जी, आप जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाएंगे ना तो तीसरे मंजिल से झांकेंगे, कुछ नहीं होगा। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करते हैं वो 40-40 महले से झांकते हैं और रस्सियों से सर चढ़ते हैं और पेंट मारते हैं। तो कुल मिला के अभ्यास से ही खत्म हो जाता है, ये बना नहीं रहता। इस तरह के जो भय हैं, तो जैसे भय क्या है? नियम को नहीं पहचानना, ये भय है। नियम को पहचान जाते हैं तो भय दूर हो जाता है। जैसे प्राकृतिक भय क्या चीज है? जब नियम को पहचान जाते हैं तो मेरे में प्राकृतिक भय खत्म हो जाता है। बरसात होगी, बाढ़ आ गई है, भूकंप आएगा, तो भूकंप आएगा, भूकंप एक व्यवस्था है। हाँ, भूकंप का पता नहीं चलेगा कब आ जाएगा, तो क्या संभावना है कि भाई या तो हम मकान, अगर हम पहचान लिए हैं कि किस एरिया में भूकंप ज्यादा आएगा तो हम मकान ही ऐसे बनाएं। मतलब भय से बचने का ही तरीका है, मतलब भय मुक्त होने का। ठीक है, कि नियम को पहचान लिया कि यहाँ भूकंप ज्यादा आता है, तो जैसे जापान वगैरह में जहां भूकंप ज्यादा आता है वहां मकान ऐसा बनाते हैं कि मकान गिर भी गया तो मरेंगे नहीं। तो कुल मिला के ये जो भय है, ये तो माने अभ्यास से दूर होने वाला है। अभ्यास नहीं है तो भय है। जैसे आप साइकिल सीखते हैं तो पहली बार तो भय में रहते हैं ना, दूसरी बार भय में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं तो उसके बाद नहीं रहते। पहली बार कार चलाते हैं तो आप हिम्मत नहीं पड़ती कि आप स्टीयरिंग पकड़े, लेकिन बाद में कब स्टीयरिंग पकड़ लिए और बात करते करते कब रास्ता भी घूम गए। मतलब फिर क्या होता है, जीवन की इतनी ताकत है, जीवन की इतनी ताकत है कि कार का आपको अभ्यास हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कार को जीवन जो है वो कार को भी एकाकार कर लेता है, कार के आकार में भी हो जाता है जब आप कार चला रहे होते हैं, जब अभ्यास हो जाता है। तो आप आगे चला रहे होते हैं और एकदम अनुमान आपका रहता है कि
मतलब 2 गाड़ियां जा रही हैं और आप बीच से निकाल लेते हो, आपको अनुमान इतना बन जाता है। ये जीवन की ताकत है। तो ये जो भय हुआ वो जीवन की कमजोरी थी, जीवन ताकतवर धीरे धीरे हो गया, वो भय खत्म हो जाता है। तो व्यवस्था के रूप में भय है नहीं, एक्चुअली ये आगे जाएंगे तो खत्म ही होने वाला है, ये बने नहीं रहने वाला है। जितना जितना जब आपको बोध हो जाएगा, जब आपको अनुभव हो जाएगा, तो आप भय मुक्त हो ही जाएंगे। मतलब वो बने रहने वाली चीज नहीं है, अभी अभ्यास क्रम में रहता है। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं अरे गिर जाएगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि हम यहां से गिर जाएंगे, तो यहां से कूद जाएगा। हाँ, गिरेगा तो रोएगा कुछ चोट लग गई तो आप हॉस्पिटल ले जाओगे, क्योंकि आप पिता हो, जिम्मेदारी आपने लिया है उसके शरीर की। जैसे बच्चे उछलते हैं, मेरा बेटा था दूसरी क्लास में पढ़ता था, तो ऐसे सीढ़ी वहां घर में है, तो ऐसे सीढ़ी है, तो सीढ़ी जहां खत्म होती है उसके बाद एक ऐसे बीम पड़ा हुआ है, दरवाजा। अब वो 2 बच्चे थे तो वो कुछ खेल रहे थे, पहली सीढ़ी से कूदा, दूसरा दूसरी सीढ़ी से कूदा, ये बोला मैं 3rd में पढ़ता हूं, मैं तीसरी सीढ़ी से कूदूंगा। अब वो तीसरी सीढ़ी पे आके कूदा, थोड़ा लंबाई उसकी ज्यादा है, मतलब अन्य बच्चों से ज्यादा लंबा था, बस कूदा तो बीम से टकराया। बीम से जब टकराया तो टकरा के पीछे आया तो आके सीढ़ी पे गिरा, तो यहां भी चोट लग गया, यहाँ भी चोट लग गया। अच्छा, जब यहां से भी ब्लड निकला, यहां से भी ब्लड निकला, अब एकाएक बच्चे लेके गए तो घर वालों को लगा कि क्या चोट लगी है कि आर पार खून हो गया है तो क्या हो गया, तो उस बच्चे को भय नहीं, मतलब अभी वो अनुमान ही नहीं लगा पाया। हम बड़े हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं। तो बच्चा आग में भी हाथ डालने जाएगा तो बहुत गर्म है, फिर भी वो मानता नहीं है, धीरे धीरे करीब जाता ही है, कुछ कुछ करता है, जैसे उसको गर्मी महसूस होती है बोलता हाँ ये सही बोल रहे हैं, गर्म है जांचता है। फिर तो क्या है, इसको परसों में बोला था कि बच्चा शरीर को सीखता है, धीरे धीरे सीख लेता है, फिर आपको भी आग के पास नहीं जाने देता। तो भय एक्चुअली परमानेंट रहने वाली चीज है नहीं। नियम समझ में आता है, अस्तित्व समझ में आता है, तो भय अपने आप जाता है। भय को हटाएंगे तो भय नहीं जाता है तो कोई भी नेगेटिव चीज को हटाएंगे तो नहीं जाता है। दुख को दूर करेंगे दुख दूर नहीं होगा। हाँ जी, दुख को दूर करेंगे तो दुख दूर होने वाला नहीं है, सुख को पहचानना पड़ता है, तो दुख अपने आप जाता है। तो बहुत सारे लोग शिविर में आते हैं जो बुद्ध परंपरा से हैं, तो बोलते हैं कि आप बोलते हैं सुख है, जबकि बुद्ध परंपरा में क्या बोले हैं, दुख है। जैसे मैं विपස්සना करता था तो उसमें जो बुद्ध परंपरा का ही वो ध्यान है तो उसमें बोले हैं दुख है, तो हमने कहा पूरी बात बताइए। अरे बोलते बता तो रहा हूं, उसमें लिखा है दुख है, आप बोलते हो सुख है, तो फिर उस परंपरा को इनकार कर रहे हो। तो हमने कहा देखिए पूरी बात को बोलेंगे तो समझ में आता है। तो बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। तो दुख का निवारण क्या है, सुख ही है। तो सुख ही है, सुख ही है, सुख ही है, वो बोले हैं। तो कोई भी चीज को पूरा नहीं सुनते हैं, पूरा नहीं समझते हैं, एक शब्द पकड़ के हम अटके रहते हैं। तो बहुत सारे दंगे फसाद झगड़े शब्द को पकड़ के हो रहे हैं, ना अर्थ पकड़ में आया, ना वस्तु पकड़ में आई, वास्तविकता पकड़ में नहीं आई, अर्थ पकड़ में नहीं आया। तो इसलिए हम वो झंडा लेके घूमते हैं। नहीं जी, झंडे को कुछ मत कहिएगा, मतलब मैंने जिस झंडा मतलब मेरी मान्यता, मेरी मान्यता ही मेरे झंडा है जो हमने मान लिया है। भाई मैं सुविधा से ही सुखी होऊंगा, अब ये भी एक झंडा है, अब आप लेके चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं जी सुविधा में सुख नहीं है, आप बोलते हो है। अरे कैसे नहीं है, गोलगप्पा खाता हूं अच्छा लगता है, पानी पूरी खाता हूं, तो आप बोल रहे हो नहीं है। तब हम बताते हैं नहीं जी है तो, लेकिन उतने से आपका काम चलता है, नहीं चलेगा तो फिर खा लेंगे कुछ तो काम चलेगा।
तो जो कुछ काम चल रहा है उससे आपका काम चलता नहीं है। तो बताते हैं कि क्या जो रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, निरंतर सुख। तो धीरे 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 करके ध्यान जाता है। इसीलिए धीरे 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 4 दिन बीता, 5वें दिन की भी सभा आई। अभी हम क्या समझे हैं? 2 ही बात, मैं जीवन हूं और जीवन क्रिया है। 5 दिन लगा यहां तक लाने में, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान इतनी जगहों पर है कि यहां आता ही नहीं है। और समझ में किसके आता है? जिसका ध्यान आता है। कान तो पास में ही है, ध्यान नहीं रहता। तो जीवन क्रिया को रखा, ये मेरे में होता है। जितनी क्रिया होती है उतनी हम देख सकते हैं, जो नहीं हो रही है उसकी संभावना बनती है। हेलो भैया, हाँ जी। एक प्रश्न है जी। आपने अभी बोला कि बुद्ध का दुख है तो आपने उसका निवारण भी है, तो उसका निवारण सुख है, बराबर। तो भय है तो भय का निवारण भी अभय ही हो सकता है ना। जी। तो मैंने क्या सोचा है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल का छोटा बच्चा है और कहीं से सांप आ जाता है और बच्चे को डंक लगाने की तैयारी में है, तो उस वक्त माँ क्या करती है? उसको भी भय तो है, सांप का भय है माँ को, तो उस समय माँ क्या करती है? उसका भय निर्भय हो जाती है और बच्चे के बचाने के लिए वो सांप को पकड़ कर फेंक देती है। जो माँ अकेली होती, सांप होता तो वो डरती, शायद नहीं पकड़ती, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए वो पकड़ कर फेंक देती है, तो वो निर्भय हो गई, तो उसका भय निर्भय से हट गया। हाँ बताइए इसको, कोई बहुत अच्छा ही उदाहरण आया है। इसमें क्या घटना हुई है? घटना क्या हुई है? जैसे ही संबंध प्रधान होता है वैसे रुचि खत्म हो जाती है। अगर देश से हमने अपने को जोड़ लिया है तो हम देश के लिए जान दे देते हैं जाकर के। तो फिर मेरा जिंदा रहना है मेरी रुचि मूलक है, लेकिन हमने देश से कोई संबंध को जोड़ लिया है तो हम इस देश के लिए जाके सीमा पे खड़े होकर गोली खा लेते हैं। या परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है दूसरे परिवार के साथ और उसमें मेरा बच्चा आगे आता है, मेरा भाई आगे आता है, मेरे पिता आगे आते हैं, हमारा संबंध ध्यान में आता है और उधर से गोली चलाता है, उसको हटा के आगे करता है। ये क्या चीज है? तो यहां जीवन क्रिया में ये बात तो पहले ही आई हुई है कि जैसे ही संबंध मूलक मेरा आस्वादन होता है, मेरा रुचि मूलक पीछे हो जाता है। निर्भय नहीं हो गई, वहां संबंध प्रधान हो गया। संबंध प्रधान हो गया तो उसको अपनी जान की परवाह नहीं रही फिर, क्योंकि जिंदा रहना उसका रुचि मूलक था। मतलब मैं जिंदा रहूं, मुझे बड़ी जी। तो उसके आगे लक्ष्य मूलक कैसे उसको समझ सकते हैं? उसमें कोई लक्ष्य? अभी वहां लक्ष्य इतना ही था, अभी वहां लक्ष्य था ही नहीं। वहां लक्ष्य इतना ही था कि बच्चे को बचाना है। लक्ष्य और संबंध दोनों काम। संबंध से लक्ष्य जुड़ गया, संबंध से लक्ष्य में हो गया। संबंध को पहचाना कि मेरा बच्चा है, सांप काट लेगा, मेरा बच्चा है, मेरी संतान है, तो उसके अंदर संबंध मूलक आस्वादन हुआ, उससे लक्ष्य पता चला इसको सांप से बचाना है। सही बात है। तो उससे वो निष्कर्ष निकलता है कि हमारा लक्ष्य मजबूत होगा तो हम संबंध लक्ष्य और अगर रुचि से पता आगे है बढ़ सकेंगे। बढ़िया। तो अभी जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, चाहे मैंने दिया था मटर पनीर का, पालक का, इसका उसका, सांप का, सुविधा का, कार का, सीमा पे लड़ने, ये सारे उदाहरण किससे हैं? ये लगभग सारे उदाहरण सुविधा से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही धीरे 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 करते हुए ये ध्यान आता है कि मैं मानव हूं, अस्तित्व का एक इकाई हूं। जैसे अन्य इकाइयां हैं वैसे मैं भी इकाई हूं। तो अन्य इकाइयों का भी अस्तित्व में होने का कोई लक्ष्य है, कोई प्रयोजन है, तो मेरा भी धरती पे होने का, अस्तित्व में होने का कोई लक्ष्य है, कोई प्रयोजन है, वो पहचान में आ जाता है। तो मेरा जीना उस लक्ष्य के अर्थ में हो जाता है। तो मैं संबंधी को भी उसी लक्ष्य की दिशा में ले जाता हूं, मैं खुद भी उसी लक्ष्य की दिशा में जाता हूं, क्योंकि लक्ष्य एक होता है तो कार्यक्रम एक होता है। तो जिसके साथ
जिसके साथ आप ट्रेन में जम्मू गए, वैष्णो देवी गए या अंबाजी गए, अंबाजी का हमको पता नहीं है, वैष्णो देवी का पता है, तो जिस ट्रेन में आप वैष्णो देवी गए, जम्मू गए, उसी ट्रेन में जो आपके साथ आके जबरदस्ती आपके सीट पे बैठ रहा था, आप बैठने नहीं दे रहे थे, हटो ये मेरी सीट है, रिजर्वेशन है मेरा, उसको किनारे किए, लेकिन वही जब जम्मू पहुंच गए और वहां से वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, तो वहां क्या करते हैं, एक साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेम से बोलो। अब वहां सहयोग देना एक दूसरे का, वहां नहीं करते हटो हमको आगे जाना जल्दी से, वहां बोलते नहीं जी चलो सब चलो सबको। अच्छा फिर क्या है, लक्ष्य पता है कहां जाना है, अच्छा वहां भी नियम बना के रखा है कि ठीक है जितने लोग टोकन लेके घुसे हैं सबको दर्शन होगा। अगर वहां नियम कर दिया नहीं टोकन भले ले लियो, दर्शन केवल 100 लोगों को होगा, तब क्या होगा, तब आप ढकेलना शुरू करेंगे। लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है, हाँ भैया लक्ष्य स्पष्ट है और ये पता है कि सब वहां पहुंच सकते हैं, तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, फिर सहयोग देने लगते हैं। अभी हमको लक्ष्य अपना अपना पता है, सबका अलग अलग, और ये भी नहीं पता है हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको मिल गया तो इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इनको ना मिले तो हमको मिलेगा। हेलो, तो हमें सबको एक ही लक्ष्य बनाना है, सुख, सभी सुख बनाना चाहते नहीं है, है, अगर लेकिन मानव, समझना है। हाँ अगर मानव प्रकृति की इकाई है, प्राकृतिक इकाई है, तो बाकी इकाइयों का अगर लक्ष्य है तो मानव का भी एग्जिस्टेंशियल पर्पज होगा। वो वो क्या है, वो क्या है उसको रखते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया, रखना ही पड़ेगा। तो मानव लक्ष्य बोलते हैं, मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व, संतुलन, ये मानव लक्ष्य है। इसको पहचाना गया है कि मानव लक्ष्य समाधान है, समाधान होता है तो सुख होता है। समाधान का मतलब ये क्या क्यों कैसे का उत्तर, हाँ वो सेटलमेंट को नहीं बोल रहे हैं, समाधान यानी क्यों कैसे का, क्या क्यों कैसे का उत्तर। समृद्धि होती है तो शांति होती है घर में, समृद्धि घर में होती है। अभय होता है समाज में तो संतोष होता है। तो सह अस्तित्व प्रमाणित होता है, अर्थात अस्तित्व में, प्रकृति में संतुलन होता है, तो आनंद की स्थिति आती है, तो हम आनंद में आते हैं। तो मानव का लक्ष्य यह है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। अब इसमें एक नया शब्द आया है, समृद्धि। अब आ गया है तो उसको भी निपटे, क्योंकि वो समृद्धि समझेंगे तो फिर आगे जो मूल्य पे चर्चा करेंगे और बढ़िया से पकड़ में आएगा। बताइए समृद्धि क्या है, इसको मिटा दें, नहीं अभी रहने दीजिए, अभी इसको मिटाएंगे थोड़ी देर बाद। समृद्धि किसको कहते हैं, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। हेलो, हाँ जी, सुख का समूह, जिससे हमें सुख मिले उसका समूह, समृद्धि। सुख का समूह, तो फिर सुख, सुख तो टुकड़े टुकड़े में हो गया ना जब हम उसका समूह ऐसा बना रहे नहीं, हैं। हाँ समृद्धि मतलब जहाँ से हमें बहुत आनंद मिले, निरंतर सुख मिले, ऐसा कुछ बत्था हमारे पास हो, सोच हो ऐसी, इसे समृद्धि कह सकते बढ़िया। हैं। और अभी समृद्धि की परिभाषा, समृद्धि किसको कहते हैं, ये थोड़ा आप सबका ध्यान थोड़ा गया ही होगा। प्रॉस्पेरिटी, देखिए भैया जिसमें गर्म हो उसमें दीजिएगा, कल ठंड, ये वाला गर्म होगा, ये भी होगा। प्रॉस्पेरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समृद्धि बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, समृद्धि बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है, किस क्या पकड़ में आ रहा है जब समृद्धि बोल रहे हैं, तो बोलते नहीं देखो ये कितने समृद्ध हैं, इनके यहाँ कितनी समृद्धि है। असली बात आप बोलते नहीं हो, बनावटी बोलते हो। हाँ जी, जोर से माइक में।
जी भैया। ज्यादा सुखी। ज्यादा सुखी। हाँ, ज्यादा मतलब निरंतरता। उसके पास साधन संपन्न है। हाँ, जिनके तो- पास ज्यादा साधन संपन्नता है अभी उनको समृद्ध बोलते हैं। बढ़िया। मतलब जितना चाहिए उतना और उससे कुछ ज्यादा ही है। इसको बता पाएंगे? मतलब साधन में ही बात कर रहा हूँ। हाँ, साधन में। ठीक है, बढ़िया। और अगर ये साधन संपन्न और धन की बाबत से बोलूँ तो थोड़ा माइक जो- करीब करिए। जो मेरे पास है वो मेरे उपयोग में भी आए और दूसरों के भी उपयोग में आए, ऐसी मेरी सोच है तो मैं समृद्ध हूँ। तो उस वस्तु की उपलब्धता को समृद्धि बोल रहे हैं या सोच को समृद्धि बोल रहे सोच को समृद्धि हैं? बोल सोच को बोल रहे हैं। ठीक है। और कल जो 7 टाइप देखे थे संबंध के, वो संबंध प्लस ये जो सुविधा है वो एक सब मिलके एक बैलेंस बना रहे, उसको हम समृद्धि बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ जी, आवश्यकता से अधिक का जो भाव होता है उसको समृद्धि बोलते हैं। बढ़िया। ज्ञान, बल, धन और हाँ जी, कहाँ पर? परिपूर्ण हो। माइक में बोल रहे हैं? अच्छा, थोड़ा माइक करीब करके। हाँ, ज्ञान, बल, माइक को मुंह के ज्यादा करीब लाइए, सीधा करिए ऐसे। हाँ, धन, ज्ञान, बल और समृद्धि से जो व्यक्ति परिपूर्ण है उसे हम समृद्ध बोले। समृद्धि कहें। बढ़िया। और कोई जो जरूरियात के तो उसे समृद्धि बोलेंगे। बढ़िया। किसी भी चीज का अभाव न रहे उसको समृद्धि बोलते हैं। बढ़िया, अभाव ही ना हो। और इधर बहनों में कोई? आप समृद्धि से ध्यान सबका जा रहा है। अब इतनी बातें आ भी गई हैं। बढ़िया। हाँ, नियति। निरंतर सुख ही समृद्धि है। निरंतर सुख ही समृद्धि है। ठीक। मतलब किसी भी चीज में निरंतरता होना वो समृद्धि है। बढ़िया। वो सेटिस्फेक्शन को लेकर भी हम देख सकते हैं। ठीक है। और हेलो, किसी को भी नुकसान न पहुंचाकर जो शांति मिलती है उसको समृद्धि कहते हैं। शांति को ही समृद्धि बोल रहे हैं। ठीक। उससे अलग भी अगर किसी के पास हो तो बताइए। चलिए, एक एक्टिविटी। हाँ जी। अपने आप में तृप्ति का भाव सदैव बना रहे भाव में, हाँ। वो समृद्धि है। बढ़िया। शरीर और मन से, कहाँ से? यहाँ से। हाँ, शरीर और मन से जो पूर्णता का भाव मिलता है उसे समृद्धि बोलते। बढ़िया। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं। बातें आई कि समृद्धि सुविधा से जुड़ी हुई है। तो सुविधा मतलब सामान सुविधा। अब जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। भाई कपड़ा रहेगा तो ही कपड़ा चाहिए, ये माइक चाहिए, चश्मा चाहिए, ये पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए, मतलब इतनी सारी सुविधा तो चाहिए ही। इस सभा को चलाने के लिए भी कितनी सारी सुविधा चाहिए। तो सुविधा होता है। तो एक होता है सुविधा में कमी और एक होता है कमी का एहसास। एहसास, एहसास समझ रहे हैं ना? कमी का एहसास। हाँ, एहसास थोड़ा उर्दू शब्द है शायद, गुजराती में भी चलता है। ठीक। तो एक होता है कमी, मतलब मेरे पास कोई कमी है, और दूसरा है एहसास कमी का। तो इसको देखते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास सुविधाओं की कमी होगी,
कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सुविधाओं की कमी है, मतलब खाने के लिए भी दिक्कत है, कपड़े का पहनने का भी दिक्कत है, घर भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग है ही हैं, अपने देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं। और जिसके पास ये सुविधाओं की कमी है उसको कमी का एहसास भी है ही है। भाई खाना नहीं है तो एक एहसास है ना कि मेरे पास खाना नहीं है, पता नहीं मुझे भूख लगेगी तो कहां से मिलेगा, तो एहसास है कि नहीं है? है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है, लेकिन कमी का एहसास है। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते ही हैं। हम में से ही ज्यादा हो सकता हूं। हाँ देखिए, स्वीकार कर लेने में क्या होता है ना, हम बड़े सरल हो जाते हैं, फिर स्वीकारते नहीं है। जो बोले थे ना, अपनी जिंदगी को हमने बड़े परिश्रम से कठिन बना दिया है। इतनी कठिन है नहीं जिंदगी। रूप पद धन बल के चक्कर में, सुविधा से सुखी होने के चक्कर में, सामान से सम्मान के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को काफी कठिन बना दिए हैं। एक्चुअली है नहीं इतना कठिन। तो स्वीकार लिया जाए कि कमी नहीं होगी, लेकिन कमी का एहसास रह सकता है। हम चाहते क्या हैं कि कमी भी ना हो और कमी का एहसास भी ना हो। तो जिनके पास साधन की कमी है, तो साधन के कमी को बोलते हैं सुविधा विहीन, एसवी। थोड़ा कोड वर्ड डालते हैं, सुविधा विहीन, कि भाई सुविधा नहीं है। और कमी के एहसास को क्या बोलते हैं? इसी को एक नाम दिया है दरिद्रता। भाई शब्द आया है परंपरा में, भाई एहसास बना हुआ नहीं है। तो सुविधा विहीन है तो दुखी है कि नहीं है? भाई खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, घर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ असुविधा बनी हुई है, तो दुखी है कि नहीं है? और मिलेगा आगे, और मिलना चाहिए, और होना चाहिए, तो ये भाव भी है, तो इसको दरिद्रता बोलते हैं। तो SVDD, इसको बोलते हैं सुविधा विहीन, दुखी, दरिद्र। इनका कोड किया जाए, इनके पास सुविधा है, यानी सुविधा संपन्न, लेकिन दुखी हैं। और का एहसास बनाई है तो दरिद्र भी है। तो सुविधा संपन्न, दुखी, दरिद्र। ऐसे आपके आसपास मिलते हैं? हम भी, आप भी उसी में। देखिए भैया स्वीकार कर लिए, हम भी एक उसमें हैं। तो सुविधा संपन्न, दुखी, दरिद्र। चाहते क्या हैं? सुविधा संपन्न और एहसास भी ना हो, यानी सुखी और समृद्ध। SSSS। ये तो चलिए हमारी कोडिंग हो गई। प्रचलित भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो जिनके पास सुविधा नहीं है और उसका एहसास भी है, इनको अभी बोलचाल की भाषा में गरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब। और जिनके पास सुविधा तो है, जितना चाहिए उतना है, या किसी के पास ज्यादा भी है, लेकिन एहसास है कि नहीं और चाहिए, और चाहिए, अभी उनके बराबर नहीं हुआ, और चाहिए, तो इन्हीं को अभी आज की बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? अमीर। अच्छा, इनका जो दुखी और दरिद्रता है वो कितने की है? कुछ पैसों कुछ रुपयों की है। इनकी जो दुखी दरिद्रता कितने की है? बहुत ज्यादा की है। तो अब जो ज्यादा गरीब है उसको हम अमीर बोलते हैं आजकल। चाहते क्या हैं? सुविधा संपन्न, सुखी, समृद्ध। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं समृद्ध। ऐसे लोग अभी ढूंढे जा रहे हैं, इनका डेटाबेस तैयार हो रहा है कि समृद्ध कौन है। तो देखिए, सुविधा विहीन होकर भी हम नहीं जी सकते, सुविधा भी चाहिए, लेकिन कितना? तो मेरी तृप्ति कितने सुविधा से हो पाएगी, ये बिना समझ के नहीं होता। इसलिए कल भी बोले थे
कि किसको कितनी सुविधा चाहिए हर आदमी अपने अनुसार ही तय कर पाएगा। उसका कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, नहीं जी आदमी को तो 2 ही कपड़ा चाहिए, आदमी को तो 2 ही रोटी चाहिए, तीसरा कपड़ा फेंको उठा के, तुम्हारा नहीं है वो। तो ऐसा नहीं है। अपनी कार्य के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने जो सामाजिक जो स्थिति है उसके अनुसार, जैसा अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार, तो कितना सुविधा चाहिए ये हर मानव अपना तय करेगा। तो क्या है वस्तु की, तो अभी बोलेंगे समृद्धि क्या निकल के आया, तो समृद्धि की परिभाषा निकल के आएगी अभाव का अभाव। अभाव का अभाव, और ये एक मानसिक स्थिति है। समृद्धि, समृद्धि भौतिक स्थिति नहीं है। आपके पास कितना भी साधन सुविधा हो करके भी आप दरिद्र रह ही सकते हैं। तो क्या है, ये मानसिक स्थिति है। हाँ, लेकिन सुविधा ही नहीं है हमारे पास और हम मानसिक स्थिति में आज हम समृद्ध हैं, ऐसा नहीं होगा। होना ही चाहिए, सुविधा है तभी हम समृद्ध हो पाएंगे। तो सुविधा भी हो और मेरे पास समझ भी हो, तब मेरी एक मानसिक स्थिति बनती है, उसको बोलते हैं अभाव का अभाव, या उसी को भैया बोल रहे थे आवश्यकता से अधिक होने का भाव। इसी को बोलते हैं आवश्यकता से अधिक होने का भाव। भाई मेरे पास मेरी जितनी आवश्यकता है उतनी मेरे पास है और थोड़ा अधिक भी है। आवश्यकता से अधिक ये नहीं है कि मेरी 2 रोटी की आवश्यकता है और मेरे पास 50 रोटी है। नहीं, आवश्यकता से अधिक, मेरी आवश्यकता 2 रोटी की है, मेरे पास 3 है, 2.5 है। तो आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो हर मानव श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करेगा तो समृद्धि के भाव में आएगा। लेकिन उसमें समझ होनी चाहिए, किस चीज की, आवश्यकता की समझ होनी चाहिए। अगर आवश्यकता की समझ नहीं है तो आपको कब पता लगेगा कि आपके पास आवश्यकता से अधिक है? आपके पास तो जितना है आपको कम ही लगता है। तो समझ उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे होता क्या है, आवश्यकता से थोड़ा अधिक होने से, तो वो जो भाई बोल रहे थे हिमांशु भाई, भय मेरा खत्म होता है, मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं। जैसे इस हॉल में कितने लोग बैठे होंगे? लगभग 200 लोग, माने थोड़ा कम ज्यादा होंगे। तो अभी सूचना आए कि 11 बजे टी ब्रेक होगा और उस टी ब्रेक में केवल 30 कप चाय है। क्या होगा? व्यवस्थापकों ने, अल्पेश भाई ने सूचना दिया कि भैया अभी बता दीजिए सबको कि टी ब्रेक होगा और 30 कप ही चाय है। तो क्या होगा? कुछ लोग थोड़ा पीछे सरकना शुरू होंगे, मतलब चाय अगर अच्छा लगता है, जिनको नहीं अच्छा लगता उनकी बात नहीं कर रहे। कुछ लोग थोड़े गेट के करीब जाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग किसी बहाने से पहले ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों? 30 ही कप है, यहाँ 200 लोग बैठे हैं। तो क्या आ गया? और हम बोल रहे हैं जी जीवन होता है और उसमें क्रिया होती है, चित्रण होता है और साक्षात्कार होता है। आपका ध्यान कहाँ है? चाय कम ही है बाहर। तो आप कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? बता दिया गया चाय कम है। तो आप भय में आ गए, विश्वास में नहीं रहे। लेकिन जैसे ही सूचना हुई कि देखिए चाय बाहर है और सबको मिलेगी और जितने लोग हैं उससे ज्यादा ही है, अब आप निश्चिंत होकर सुनेंगे। हाँ भैया बताओ, क्या बोल रहे थे बोध के बारे में? अब आप निश्चिंत होकर सुनेंगे। तो सुविधा किस लिए चाहिए? सुविधा से मेरे में मानसिक निश्चितता आती है। तो पहले दिन से मैं क्या कह रहा हूं, मानव हर चीज की निश्चितता चाहता है। क्या चाहता है? निश्चितता चाहता है।
सुविधा की निश्चितता चाहता है, भाव की भी निश्चितता चाहता है, मेरे में विश्वास बना रहे, मेरे में सम्मान बना रहे, मेरे पास सुविधा बनी रहे, मेरा संबंध बना रहे। तो मानव निश्चितता चाहता है। तो समृद्धि भी क्या है? एक मानसिक स्थिति है और वो निश्चितता की तरफ आपको ले जाती है। तो जब आप सुविधा की दृष्टि से निश्चिंत होते हैं तो आप समझ के लिए लग जाते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर 1,00,000 साल में मानव सुविधा के अर्थ में काफी कुछ प्रगति कर लिया है तो आगे समझ के अर्थ में अब लग जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन कब लग पाएगा? जब सुविधा को पहचान पाएगा कि मेरी आवश्यकता जितनी है उतना हो गया है और उससे थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा किस लिए चाहिए? मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में किसी को दिक्कत हो गई तो आपको देने के लिए चाहिए ना, थोड़ा दे दो उनको भी। तो आवश्यकता से अधिक रहता है तो आप ज्यादा सुरक्षा के भाव में रहते हो, यानी निश्चितता में रहते हो। केवल आवश्यकता भर के है। हाँ, आटा मेरे पास है और 4 रोटी भर के है, मतलब 4 रोटी के लिए है, और हम 2 लोग हैं और 2-2 रोटी खाते हैं, तो हम निश्चिंत रहेंगे, या मेरे पास 5-6 रोटी का रहेगा तो निश्चिंत रहेंगे? हाँ जी बताइए। 2 लोग हैं और दोनों लोग 2-2 रोटी खाते हैं और हमारे घर में 4 ही रोटी का आटा है, तो उस समय हम ज्यादा निश्चिंत रहेंगे या 5-6 रोटी का है तो निश्चिंत रहेंगे? क्यों? हाँ, मान लीजिए कोई आ गया तो क्या करेंगे? कह देंगे जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका सम्मान है, आटा नहीं है हाँ, सम्मान आपको पूरा मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए हम निश्चिंत ही तब होते हैं जब हमारे पास आवश्यकता से थोड़ा अधिक होता है। हम निश्चितता चाहते हैं। तो समृद्धि क्या है? एक निश्चितता है। लेकिन ये कब आएगी? जब मैं आवश्यकता को पहचान पाऊंगा अपने। आवश्यकता की पहचान ही नहीं है तो निश्चितता कहां से आएगी? तो पहले दिन या दूसरे दिन बोले थे कि मानव दूसरों से प्रभावित हुए बिना जब अपनी आवश्यकता को पहचान लेता है, यही उसकी योग्यता है, यही उसकी समझ है। कि मेरी आवश्यकता को कौन पहचानेगा? मैं पहचानूंगा। तो मैं दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता को पहचान लेता हूं, यही मेरी योग्यता है, यही मेरी समझदारी है, यही मेरी समझ है। नहीं तो मैं अयोग्य हूं, नहीं तो मैं नासमझ हूं अभी तो मेरी आवश्यकता को कोई दूसरा ही पहचानवाता है। आपको पता नहीं है आपकी आवश्यकता ये है। हाँ, ये चीज पी के देखो, उड़ जाओगे आप। अब आपको तो उड़ना है फिर नीचे एक वैधानिक चेतावनी दे देते हैं विज्ञापन में दिखाया गया दृश्य का सत्य से कोई नाता नहीं है। वो छोटा लिखते हैं आपको दिख रहा है कोई चीज, कोई पिया और उड़ने लगा। छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो गए, बोले नहीं यही ले आओ, हम भी पिएंगे। तो क्या हो गया? हमारी आवश्यकता को कोई दूसरा बताता है, या हम दूसरों से प्रभावित होकर के ही अपनी आवश्यकता का पता लगा पाते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, मैं समृद्धि के भाव में नहीं आता, मैं दरिद्रता में ही मर जाता हूं। अरे क्या करूं, अभी तो वहां एक मकान बाकी था, ओहो वहां जो जमीन देख के आया था वो खरीद नहीं पाए, क्या बताया जाए, काम अधूरा रह गया और मैं अब जाने वाला हूं तो पूरी जिंदगी बीत गई, हम समृद्धि के भाव में आ ही नहीं पाए, जबकि जिंदगी भर एक ही काम किए, सुविधा ही जुटाए, लेकिन संबंध तो जुटाए नहीं वैसे भी सुविधा ही जुटाए। देखिए बड़ों का सम्मान इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोग बोलते हैं भाई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या है? आके हम लोग के पास ऐसे केस आते हैं, भाई इसको समझाइए मेरा बेटा है मेरी बात नहीं मानता तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू आपका बात नहीं मानती, आपकी पत्नी, आपके पति आपका बात नहीं मानते, इसका मतलब क्या है?
बात मानना ना मानने का क्या मतलब है? भाई मैं आपकी बात नहीं मानता, इसका क्या मतलब है? जी दो शिवांश माइक। मतलब उस टाइम दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। बढ़िया। और विश्वास का अभाव। बढ़िया। और असहमति। असहमति। ठीक है। हाँ चाणक। जो नहीं मानता है उसे अपने पे विश्वास ज्यादा होगा। जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखना। अरे अपेक्षा तो नेचुरल है, ज्यादा कम होता ही नहीं है। चलिए ये भी ठीक है, हमने अपेक्षा कर लिया, बात मानना चाहिए, वो मान ही नहीं रहा है, तो हम एक्चुअली अपेक्षा ज्यादा कर रहे हैं, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि उसको तो कुछ आया नहीं, खुद तो जीना आया नहीं, हमें क्या सिखाएगा। इसको और अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? ये तो खराब भाषा हो गई। हाँ कोई बेटा और या बेटी पिता की बात नहीं मान रहा है, तो बोले क्यों नहीं मान रहा है? जी इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसको पता है मेरे पिता को कोई समझ नहीं है। तो ये थोड़ी सी अलग भाषा, इसको और अच्छी भाषा में कैसे बोलेंगे? उसकी श्रेष्ठता को वो नकारता है। हाँ बहुत अच्छा। तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकारता ही नहीं है। जिसकी श्रेष्ठता को आप स्वीकारते हैं उसको फॉलो करते हैं, आप उसका अनुसरण करते हैं। तो अगर मेरी बात कोई किसी क्षण नहीं माना है तो आप समझ जाइए, आप में जो अपने आप को मान रहे हो नहीं, आप समझदार हुए ही नहीं हो, आप में श्रेष्ठता है नहीं, या आपकी श्रेष्ठता हो गई है उसकी पहचान नहीं पा रहा। तो अभी हम उम्र के आधार पर श्रेष्ठ बताते हैं अपने को। तो श्रेष्ठ होना और श्रेष्ठता को पहचानना ये दोनों दो घटनाएं हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, क्या मैं पहचानता हूं? अगर मैं श्रेष्ठता को पहचान पाता हूं तो अपनी भी श्रेष्ठता को पहचानता हूं, दूसरे की भी श्रेष्ठता को पहचानता हूं। और बिना श्रेष्ठता को पहचाने कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है। तो एक्चुअली हम जितना अपने को मान बैठे हैं उतने श्रेष्ठ हैं नहीं। हमारे आचरण में वो श्रेष्ठता है नहीं, मेरे पास केवल भाषा है, हमारे पास शासन है केवल। हम शासन के बल पे, तो हम पिता के रूप में इसलिए बात को मनवाना चाहते हैं क्योंकि पिता के रूप में हम एक अपने को अथॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं। मैं अथॉरिटी हूं, मैं पिता हूं, मैंने जन्म दिया है, मैंने तुमको सुविधाएं दी हैं। अब कभी कभी बच्चे ऐसे बिगड़े होते हैं, पलट के बोल देते हैं, तो कौन सा बड़ा काम किया है? आपकी जिम्मेदारी थी। तो क्या हुआ कि हम अगर किसी अथॉरिटी से बोलेंगे, पिता हूं, दादा हूं, बाबा हूं, बड़ा भाई हूं, मैं पति हूं, मैं पति हूं, और पति तो परमेश्वर है, इसकी बात को मानो। तो जब भी मैं किसी अथॉरिटी से बोलता हूं तो अगले को आपकी अथॉरिटी स्वीकार नहीं होती है। हर मानव को दूसरे मानव का आचरण ही स्वीकार होता है, श्रेष्ठता ही स्वीकार होती है। इसीलिए बोले ये रूप पद धन बल ये घर के बाहर चलता है, क्योंकि घर के बाहर आप जीते नहीं हैं, घर के बाहर आप ज्यादातर एक्टिंग करते हैं। क्यों भैया? घर के बाहर ज्यादातर आप एक्टिंग करते हैं, आप अच्छे हैं नहीं, अच्छा होने हैं ये दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही घर के चौखट के अंदर आते हैं आपकी एक्टिंग वहां चल नहीं पाती, क्योंकि घर के बाहर कोई शिविर चले, हाँ जी, घर के बाहर कोई भी शिविर चले, घर के अंदर केवल और केवल एक ही शिविर चलेगा, उसका नाम है आचरण शिविर। घर के अंदर केवल आचरण ही स्वीकार होता है। तो कल जो यहां चर्चा हुई थी अच्छा होना और अच्छा लगना, तो आप अच्छा लगने की कोशिश बाहर कर सकते हो, अंदर आप अगर अच्छे हैं नहीं तो चौखट के अंदर आपका अच्छा लगना काम नहीं आएगा।
तो लोग बोल देते हैं भाई देखो सब घर में तो बिल्ली ही बन जाते हैं क्यों बिल्ली बन जाते हैं? क्योंकि हमारा आचरण उतना श्रेष्ठ हुआ नहीं है। अच्छा लगना, अच्छा होना का एक एग्जाम्पल याद आ गया, बताऊं? हाँ क्योंकि वो चर्चा आई तो एग्जाम्पल याद आ गया। तो 4 दोस्त थे और वो कहीं बाहर पहाड़ों में, गर्मी का सीजन था और कहीं बाहर पहाड़ में घूमने का मन बना लिए। भाई दिल्ली में गर्मी में बहुत उमस होती है, यहाँ भी होती होगी, तो बहुत ज्यादा उमस हो रही थी, तो उन लोगों ने पहाड़ में कहीं घूमने का कार्यक्रम बना लिया कि हम चारों चल के बाहर से घूम के आते हैं। अब उसमें से एक जो है, उनके घर में कोई दिक्कत आ गई, उनकी पत्नी, उनके घर का कोई सदस्य नहीं स्वीकार किया कि आप बाहर जाइए। हमने आप ही को गर्मी लग रही है क्या? हमको नहीं लग रही है आप ही जाओगे घूमने बाहर। तो एक के घर में सहमति नहीं बन पाई और वो नहीं जा पाया, बाकी के 3 चले गए बाहर घूमने। जैसे ही बाहर गए पहाड़ी रास्तों में, तब तक बारिश हो गई, तेज बारिश हो गई। उस तेज बारिश में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड हो गया तो क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया पहाड़ों में रास्ता बंद होता है तो कब खुलता है? कोई भरोसा नहीं है 2-2 दिन, 3-3 दिन भी लग सकते हैं। अब रास्ता बंद हो गया, अब गाड़ियां लाइन से खड़ी हो गई। अब ये 3 दोस्त परेशान, 2 ही दिन की छुट्टी थी बेचारों की, पहाड़ में घूमने आए थे और रास्ता बंद, गाड़ियां सब लाइन से खड़ी हो गई। अब क्या करें, क्या करें? तो गाड़ियों से निकल के टहल रहे हैं। टहलते टहलते उनको पहाड़ में कोई एक सीन अच्छा लग गया। कोई पहाड़ था, वहां कोई पेड़ था, पौधा था और नीचे खाई दिख रही थी। बोले यार ये सीन अच्छा है, एक सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी लेंगे तो मुस्कुराएंगे ही। अच्छा, अब ये दोनों खुश हैं कि परेशान हैं? हाँ जी, ये तीनों खुश हैं कि परेशान हैं? परेशान हैं। लेकिन जब सेल्फी खींचेंगे तो मुस्कुराएंगे। और एक सेल्फी लिया और लेके क्या किया? ग्रुप में डाल दिया। आजकल फोटो किस लिए खींचते हैं? उसको कहीं चिपकाना रहता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं चिपका। तो उन्होंने क्या किया? किसी सोशल मीडिया में उसको चिपका दिया। अब इस फोटो को वो देख लिया। कौन? जो घर रह गया, गया नहीं था। हाँ, ये सब क्या सोच रहे हैं? यार गलती हो गया, आ गए, देखो रास्ता बंद हो गया, क्या बताएं, बहुत गलती हो गई, बहुत पर, ये सब सोच रहे थे। तभी वो सीन दिखा और वो फोटो खींच लिए मुस्कुराते हुए और उन्होंने डाल दिया। अब उस फोटो को वो देख लिया। वो क्या बोलता है अपनी पत्नी से? ये देखो ये कितने मजे कर रहे हैं, एक तुम हो, हमको जाने ही नहीं दी तो क्या हुआ? अच्छा है या अच्छा लग रहा है? दोनों को, इनको भी उनको भी। तो अच्छा केवल लग रहा है, अच्छा है नहीं। तो ये उदाहरण इसलिए रखे क्योंकि हम ज्यादातर जिंदगी में ऐसे ही एक्टिंग करते हैं, मुस्कुराने की, सेल्फी डालने की। देखो हम कितने खुश हैं आप देखो हम कितने खुश हैं, आप भी जलो कि हम खुश हैं। हाँ, और अगला भी बेहोशी में है, उसको लग ही जाता हाँ ये बहुत खुश हैं, देखो ना फोटो में कितने खुश हैं। तो कुल मिलाकर के एक्टिंग बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में केवल आचरण चलता है। तो आपके आचरण की श्रेष्ठता को कोई भी स्वीकारता है। तो हम अगर आचरण में श्रेष्ठ नहीं हैं और हम किसी अथॉरिटी के नाते बात मनवाने की तो मैं सीधा बोलता हूं कि आप बात क्यों मनवाना चाहते हो? हम तो प्रस्ताव पहले ही दिन हम रख दिए, मत मानिए लेकिन फिर भी आप मेरी सब बात मान ही रहे हो क्यों मान रहे नहीं मान रहे? जबकि हम पहले ही दिन कह दिए आप मत मानिए तो बात जिंदगी से जुड़े, काम लायक हो, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति पहचान में आए, स्वीकार हो, उसकी बात को सुनता ही है। मानव समझना ही चाहता है, मानव जीना ही चाहता है। इसीलिए वो संबंध, और ये संबंध में ही होता है। समझना जीना दोनों संबंध में होता है। समझने जीने का कार्यक्रम साथ साथ है, समझने जीने का कार्यक्रम साथ साथ है, यात्रा साथ साथ है।
तो ये सारे के सारे संबंध समझने और जीने के अर्थ में है। समझना जीना, समझना जीना, तो जीवन क्रिया में क्या है? ये समझने का रास्ता है, इसको प्रत्यावर्तन बोलते हैं। और ऐसा समझ जाते हैं तो जीते हैं, इसको परावर्तन बोलते हैं। तो समझते हैं, जीते हैं, कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको और देखते हैं एक बार, फिर जीते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि समझना बीना जीना एकदम कनेक्ट हो जाता है और मेरी जिंदगी में एक फ्री व्हील चल जाती है। उस स्थिति को बोलते हैं शांति और सुख। तो समृद्धि आती है तो शांति होती है, और समृद्धि परिवार में आती है, परिवार में जी के आती है। अकेले में समृद्धि का कार्यक्रम नहीं है, समृद्धि का कार्यक्रम परिवार में है। तो समझना जीना, तो समझना व्यक्तिगत है, जीना परिवार में है। जी के समझना, तो समझना जीना फिर जी के समझना, ये साइकिल चलता रहता है। चलते 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 एक क्षण को हमको अनुभव होता है और हम निरंतर सुख ऐसी संभावना बनती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे मित्र हैं, जितने भी लोग इस बात को रखते हैं, तो जितनी बात समझ में आ गई है, जितनी स्पष्टता हो गई है, उसका सुख मेरे साथ बना हुआ है। जितनी स्पष्टता हो गई है उतना सुख मेरे साथ बना हुआ है, उस सुख को ही हम बांटना चाहते हैं। जितनी स्पष्टता बाकी है, तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ दूरी तक जाते हैं, उसके आगे का आप अनुमान कर लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो जितनी स्पष्टता, कल कुछ मित्र पूछ रहे थे क्या आपको अनुभव हुआ है, तो जितनी स्पष्टता हुई है उतनी स्पष्टता के साथ जीता हूं, आगे का अनुमान बन गया है। तो आप एक रास्ते पे जाते हैं तो अनुमान उदय होता है, रास्ता ही गलत है तो क्या अनुमान उदय होगा? तो एक रास्ते पर हैं, सही रास्ते पे हैं, तो जितनी स्पष्टता हुई है, जितनी होती जा रही है, आपके साथ बात करते हुए भी हो रही है, जितनी स्पष्टता होती जा रही है उतने से आगे का और अनुमान उदय होता जा रहा है। आप भी जब अध्ययन के रास्ते पे आएंगे तो आपका भी स्पष्टता होगा और उससे आगे का अनुमान उदय होगा। जितना जितना अनुमान उदय होगा उतना उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बोलते हैं परिचय शिविर के बाद अध्ययन शिविर, अध्ययन शिविर, अध्ययन शिविर, अध्ययन शिविर के बाद अभ्यास शिविर में जीने का अभ्यास। तो अध्ययन, पहले तो सूचना को पचाया जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये सारी सूचनाएं हैं जिसको आपके बीच रख रहे हैं, आप उसको पचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको पचेगा ठीक है, जिसको नहीं पचेगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो बोल ही दिए हैं कि हम कोई मनवाने नहीं आए हैं कि नहीं जी एक मध्यस्थ दर्शन है, एक बाबा नागराज जी ने लिखा है और आप मानो, मान के जियो, और बाबा जी का फोटो ले जाओ, घर में लगाओ, अगरबत्ती दिखाओ और आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये प्रस्ताव है, मेरे सामने आया, मैं इसको समझने में लगा, मैं एक समय बिताया। तो मैं अगर प्रचलित शिक्षा में 18 साल बिताया और मुझे उपलब्धि केवल डिग्री की हुई कागज की, देखिए सारी पढ़ाई में कागज ही खर्च हुआ। क्या खर्च हुआ? कागज खर्च हुआ। कौन सा कागज? धन्यवाद, आपका ध्यान है। कौन सा कागज खर्च हुआ? एक तो लिखने पढ़ने का कागज खर्च हुआ और एक हमारे माता पिता का कागज खर्च हुआ। ये भी कागज ही है, प्रतीक मुद्रा, और क्या है? तो सारी शिक्षा यात्रा में कागज ही खर्च हुआ, इसलिए निकलते समय कॉलेज वालों ने भी एक कागज ही पकड़ा दिया। ले जाओ। तो कागज बहुत इकट्ठा किया मैंने, मतलब मैंने व्यक्तिगत रूप से। हाँ, मेरा मन था मैथ्स पढ़ूंगा, क्योंकि बचपन से बताया जाता था मैथ बहुत कठिन है। हमको लगता था कठिन काम ही करना, आसान तो सब कर रहे हैं। तो मैथ्स में पीजी कर लिया। उसके बाद टीचर हो गए। अच्छा, फिर बोले कि नहीं, हमारा टीचर बनने का मन कर दिया, क्योंकि पिताजी पुलिस में थे और हमको पुलिस का काम अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, पुलिस का काम नहीं अच्छा लगता था तो कोई भी प्रशासनिक काम अच्छा नहीं लगता था। ये सारा प्रशासनिक काम तनाव देता है, डीएम भी तनाव। पिताजी बताते थे हमसे ज्यादा तनाव में एसएसपी रहता है,
डीएसपी रहता है, उससे ज्यादा तनाव में डीएम रहता है। वो बताते थे तो हम सोचते थे क्यों तनाव में आना। तो हमने चर्चा करके देखा, मेरे गांव में 6-7 शिक्षक थे, मेरे गांव में 6-7 टीचर थे। अब उसमें से 2-3 हैं, बाकी निधन हो गया, अभी रिटायर हो गए, 1-2 नए बच्चे भी टीचर हो गए। तो 6-7 शिक्षक थे। मैं देखता था खूब मस्ती में 5 घंटा नौकरी करते थे, उसके बाद आके खेती करते थे और दरवाजे पे कुर्सी पे बैठ करके देश दुनिया की बातें करते थे और अपने को बहुत बड़ा मानते थे, विद्वान भी मानते थे। कल बोले नहीं, शिक्षक और वकील ये दोनों भ्रमवश अपने को विद्वान मानते हैं तो मुझे लगता था ये मजे की नौकरी है, शिक्षक ही बनना चाहिए। तो मैं शिक्षक बाय चॉइस बनाऊं, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। और आज मैं जब इस कंटेंट के साथ 11 साल बिताया हूं तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं शिक्षक हूं। तो युवा पीढ़ी को बोल रहे हैं, शिक्षक होना गर्व की बात है। शिक्षक ही ऐसा काम है जो मानव के साथ उसकी समझ के लिए इंटरेक्शन करता है। फैक्ट्री में आप करते हैं तो समझ के लिए इंटरेक्शन नहीं करते, उत्पादन के लिए करते हैं। कंपनी में काम करते हैं तो उत्पादन के लिए, कहीं भी। लेकिन शिक्षण ही ऐसा काम है जिसमें मानव के समझ के लिए इंटरेक्शन होता है। और जब जब समझ नहीं होती तो मेरे जैसा संवेदनशील शिक्षक पीड़ा में आता है, बच्चा समझा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं। मैं तो जोर लगा रहा था समझने का, मेरी योग्यता में ही कोई कमी है। इसलिए यहाँ रोज नया इन्वेंशन करने का, रोज। अब जीवन क्रिया में जो 4 साल पहले रखता था, आज मैं उसको अलग ढंग से रखता हूं और मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छे से पहुंच रही है। ऐसे करते करते सभाओं में आते आते मैं हर सभा में थोड़ा और करेक्शन कर लेता हूं, इसको और कैसे रखा जाए कि सब तक पहुंच जाए। ये शिक्षक है जो बच्चे तक समझ पहुंच जाए, बच्चा मतलब जो समझने के लिए आया है उस तक समझ पहुंच जाए, उसके लिए रोज नया इन्वेंशन करता हो, रोज नया तरीका, पेडागॉजी, इन्वेंशन मतलब पेडागॉजी, रोज शिक्षण विधि में अपने बदलाव करता हो। यह अवसर शिक्षक के पास है। समझ का काम करता है, मानव को जिंदगी देने का काम शिक्षक करता है, बाकी सारी जगहों पे सुविधा देने का काम है। तो मैं शिक्षक बना, उसमें बीएड कर लिया। बीएड करके दिल्ली जब टीचर हो गए, टीचर होके दिल्ली आए तो दिल्ली में एससीईआरटी में हमारी पोस्टिंग हुई। एससीईआरटी होती है जैसे देश में एनसीईआरटी है, वैसे हर स्टेट में एससीईआरटी होती है। यहाँ की भी एससीईआरटी कहीं होगी, अहमदाबाद होगी या कहीं होगी। तो एससीईआरटी में आए तो एससीईआरटी के लोगों ने कहा कि देखो जी, एससीईआरटी की न्यूनतम योग्यता एमएड है और आप एससीईआरटी वालों की जब ट्रेनिंग लोगे, शिविर लोगे, तो कोई पूछ लिया कि आप एमएड हो तो क्या होगा। दिल्ली में टीचर जो है ना वो डिग्री से ही सुनते हैं। जैसे अगर प्रिंसिपल का शिविर अगर कोई टीचर लेगा, यानी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग अगर कोई टीचर लेगा तो प्रिंसिपल सुनेगा ही नहीं। भाई मैं मुझसे छोटा पदधारी हमको कैसे ट्रेनिंग देगा समझ कितना वो मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं एमएड भी कर लिया 2016 में इग्नू से। तो लोग बोले इग्नू से एमएड कठिन होता है, हमने कहा हम तो कठिन काम ही करते हैं। हमने कर लिया और उस दिन बताए भी थे कि पढ़ाई भी ज्यादा नहीं किया, फिर भी 76% नंबर आ गया। अब देखिए, एक कागज और मेरे पास आ गया। जैसे ही वो कागज आया वैसे ही दूसरे मित्र बोले, देखो जी एससीईआरटी में नेट भी कंपलसरी होती है हाँ नेट, क्योंकि यूजीसी से अप्रूव है, नेट भी होना चाहिए। तो क्या करें, बोले भैया आप नेट भी कर लो। हमने कहा नेट तो कठिन होता है। बोले आप तो कठिन काम करते हो, कर लो तो मैं नेट भी दे दिया और 2018 में नेट भी निकल गया। तो क्या किए, मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा मतलब डिग्री निकालने वाला एक मशीन हूं। मैं बता रहा हूं कि मैं शिक्षा में इतने सालों में कागज की डिग्रियां जुटाता रहा, लेकिन वो आज मेरे जिंदगी में कोई काम नहीं आ रही है। उससे इतना ही हुआ, एक सरकार में नौकरी मिली है और उसको मैं कर रहा हूं। लेकिन कितना करता हूं, जितना सरकार की अपेक्षा है उससे कई गुना ज्यादा करता हूं। जब हैप्पीनेस की, हाँ मैं ताली बजवाने के लिए नहीं बोला था ये जब हैप्पीनेस की किताब लिखी जा रही थी तो आप देखिए उसमें 9 किताबें हैं, मतलब उसका वजन 5 किलो है लगभग ठीक है, कोई कोई किताब 250 पौने 300 पेज की है। अब 9 किताबें लिखी जानी थी, तो कोई भी सरकार जब किताब लिखती है तो
तो किताब के लिखने में बहुत खर्चा होता है। इतने वर्कशॉप कराने पड़ते हैं कि 9 किताब लिखने के लिए तो 8-9 करोड़ तो खर्चा होगा ही होगा, तब वो किताब छपती है। एक बार छप गई तो फिर खर्चा कम हो जाता है, फिर वो धड़ाधड़ छपती है। लेकिन दिल्ली सरकार का सबसे कम खर्चा हैप्पीनेस की किताब लिखने में हुआ है, क्योंकि हमने जो टीम बनाया, मैंने जो टीम बनाया, क्योंकि मेरे ही उसमें नेतृत्व में लिखा जा रहा था, तो मैंने जो टीम बनाया उस टीम में ऐसे टीचर्स को लिया जो हमारे साथ पिछले 2 साल से अध्ययन में लगे हुए हैं, और वो 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करते थे और कोई अतिरिक्त एक पैसा किसी ने नहीं लिया। जब छपाई हो रही थी प्रेस में बैठे रहते थे 2 बजे रात तक, क्योंकि प्रेस में आप जानते हैं वहीं पे प्रूफ रीडिंग करना रहता, बैठ के एक पेज बैठे रहते थे, लेकिन कोई पीड़ा भी नहीं थी, कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं लेते थे। और हमने सारा काम टेक्नोलॉजी को यूज करके किया, यानी ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे किया। तो गूगल ड्राइव पे सब कनेक्ट रहते थे, काम करते थे, एक दूसरे का काम देखते रहते थे। इसलिए बोला ना, सुविधा तो महत्वपूर्ण है ही है, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर लिया तो अच्छी बात है। तो अलग अलग जगहों पे कोई हमारे मित्र पता चला छत्तीसगढ़ चले गए हैं, लेकिन हमारे साथ काम में जुड़े हुए हैं ड्राइव पे, उसी पे प्रूफ रीडिंग हो गया। तो कागज भी नहीं इतने ज्यादा बर्बाद हुए। 9 किताब लिखने में बहुत कागज बर्बाद होते हैं, इतनी बार प्रिंट निकालना पड़ता है। हम लोगों ने केवल एक लास्ट में फाइनल प्रिंट निकाला, केवल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अप्रूवल के लिए, कोई प्रिंट पहले नहीं निकाले। तो समय भी लगाया, किसी ने एक पैसा भी नहीं लिया और कागज भी बर्बाद नहीं हुआ। तो ऐसी एक टीम खड़ी हो गई दिल्ली में, तो वो कैरिकुलम बन पाया और सरकार भी किसी दबाव में नहीं आई। नहीं तो सरकार को 8-9 करोड़ का बजट पास कराना पड़ता है हैप्पीनेस के लिए, तो क्या होता, लोगों के मन में क्या आता, ये हैप्पीनेस कैरिकुलम तो पैसा कमाने के लिए आया है हाँ, इसीलिए 8-9 करोड़ का बजट लिया गया। बजट लिया नहीं गया, केवल छपने का लिया, और छपने का हमसे मतलब नहीं है। हमने बना के SCRT को दे दिया, SCRT छपवाई। अगर छपने में कोई गड़बड़ी है, कमीशनबाजी हुई है, तो मेरा दोष उसमें नहीं है, SCRT जाने, उनकी एजेंसी जाने छापने वाली। तो ऐसे पवित्र लोग, ऐसे आत्मविश्वास से भरे लोग हमको मिल गए पिछले 3 साल से काम करते हुए। तो मैं जो 10 साल से इसमें लगा रहा, 10 साल से लगा हुआ हूं, उसमें जो उपलब्धि हुई है, वो कल भी बोला था कि जितना मैं लगा हूं उससे ज्यादा हुई है। तो आपके लिए भी आश्वासन है कि जितना आप लगेंगे उससे ज्यादा उपलब्धि होने की संभावना है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा जितना आप लगते हैं उससे ज्यादा उपलब्धि होती है। सुविधा के क्षेत्र में जितना आप लगते हैं उससे कम उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में ये गारंटी है कि जितना आप लगोगे, लगने का मतलब क्या है, ज्ञान के क्षेत्र में लगने का मतलब ध्यान। तो जितना आपका ध्यान जाएगा उतना उपलब्धि होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अभी हमने केवल 2 बात की है 4.5 दिन में मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर मेरा साधन है। हाँ जी नियति, क्या बात हुई है, मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर मेरा साधन है। भ्रमवश मैंने स्वयं को शरीर मान लिया है, इसीलिए आहार निद्रा भय प्रजनन को अपना विषय मान लिया है। और हमें लगता है कि शरीर चूंकि भौतिक रासायनिक इकाई है, इसलिए मैंने खुद को भ्रमवश शरीर मान लिया है। तो मुझे लगता है मेरी सारी आवश्यकता केवल भौतिक और रासायनिक है, इसीलिए मैंने सुविधा बराबर सुख मान लिया है, सामान बराबर सम्मान मान लिया है। अब तक मैं इस गलती में, इस भ्रम में गलतियां करता आया और मुझे सूचना मिला कि गलती से सीखते हैं, गलती से हमने कुछ सीखा नहीं, गलती से केवल इतना सीखा कि अभी ये वाली गलती नहीं करनी है, उसके आगे हमने उससे बड़ी गलती कर दी। फिर उस गलती से यही सीखा ये वाली गलती नहीं करनी है, उसके बाद और बड़ी गलती कर दी। सही पकड़ में नहीं आया, सही समझ में नहीं आया कि मैं एक जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर केवल एक साधन है, यात्रा शरीर की नहीं है, यात्रा जीवन की है। शरीर की भी यात्रा है लेकिन वो सीमित है। जीवन एक यात्रा पे चल रहा है,
किसकी यात्रा पे? समझ की यात्रा पे अनुभव संपन्न होना चाहता है। उसके लिए बोध एक अनिवार्यता है, उसके लिए साक्षात्कार है, उसके लिए निरंतर चीजों पे ध्यान रहना पड़ता है, निरंतर चीजों को पहचानना पड़ता है, उसके लिए अपना तन मन धन लगाना पड़ता है। ऐसा लगाते हैं तो एक उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को बोलते हैं समाधान, उस उपलब्धि को बोलते हैं समझ। ऐसा करते हुए मुझे मानव लक्ष्य पकड़ में आता है कि मानव लक्ष्य तो समाधान है, स्वयं के स्तर पे समाधान, परिवार के स्तर पे समृद्धि, समाज के स्तर पे अभय और अस्तित्व के स्तर पे सह अस्तित्व। यहां हमारा ध्यान जाता है। ध्यान जाता है तो क्या होता है? मेरी जिंदगी आसान हो जाती है, मेरी जिंदगी सरल हो जाती है, मेरी जिंदगी सहज हो जाती है। और जिंदगी वास्तव में सरल ही है, सहज ही है। मैंने बड़े परिश्रम से, बड़ा तन मन धन लगा करके अपनी जिंदगी को नरक बनाया है। समस्त मानव जाति ने, यहां बैठे हुए लोग नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं। इस सभा में बैठे हुए लोग नहीं कह रहा हूं मैं, बाहर वाले अपनी जिंदगी को नरक बनाया। आप तो अच्छा ही बनाए हैं भाई, आपके साथ अभी 1.5 दिन बात करनी, 2 दिन तो जिंदगी आसान है। भाव पकड़ में नहीं आया तो भाव पकड़ में नहीं आया तो संबंध कोई भी, हम अभी जीते संबंध में है तो संबंध पकड़ में आया शरीर के आधार पे, विचार के आधार पे। संबंध कैसे पकड़ में आया? शरीर के आधार पे या विचार के आधार पे? शरीर के आधार पे संबंध पकड़ के आया तो उसमें कोई उम्र में बड़ा है, उसकी बात मानो। विचार के आधार पे संबंध पकड़ में आया तो मेरा विचार अच्छा है, आपका विचार खराब है, या दोनों का विचार एक ही है, चलो साथ साथ गाना गाते हैं एक विचार वाला, लेकिन दोनों का विचार व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, प्रिय हित लाभ के ही अर्थ में है, न्याय धर्म सत्य है ही नहीं है। तो जब तक न्याय धर्म सत्य के अर्थ में विचार नहीं होगा, तब तक विचार एक नहीं होगा, तब तक वैचारिक संबंध भी कलह वाला ही, कलेश वाला ही होता है। तो न तो मुझे वैचारिक संबंध में तृप्ति मिल पाती है, न ही पारिवारिक संबंध में तृप्ति मिल पाती है, क्योंकि संबंध समझ में आया ही नहीं है। क्योंकि संबंध जब भी समझ में आएगा तो उसमें मूल्य ही समझ में आएगा। अब ये वाला बोर्ड भैया मिटा दीजिए। अपेक्षाएं ही पकड़ में आएंगी, लेकिन केवल मूल्य समझ में आ जाने से भी कुछ नहीं होगा। उसका निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे मेरा ध्यान बना रहेगा। निर्वाह हो गया, ये मैं जान भी पाऊंगा, मूल्यांकन भी कर पाऊंगा, उस घटना को बोलते हैं तृप्ति। तब मेरे में तृप्ति होगी। तो जो बोले थे इच्छा मुक्ति और इच्छा पूर्ति, और यहां का बोलते हैं इच्छा तृप्ति। हाँ जी, मेरा ध्यान इस बोर्ड पे है। तो एक दिन परसों चर्चा किया था या कल ही किया था, याद नहीं है। इच्छा मुक्ति और इच्छा पूर्ति, ये दो परंपरा आई। आदर्शवाद ने इच्छा मुक्ति की बात किया, भौतिकवाद ने इच्छा पूर्ति की बात किया। उस समय मैंने कहा था ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद क्या बोलता है? इच्छा तृप्ति। इच्छा तृप्ति का मतलब क्या हुआ? इच्छा क्या चीज है? चित्रण ही है। इच्छा तृप्ति का मतलब क्या हुआ? चित्रण की तृप्ति। चित्रण की तृप्ति का मतलब क्या हुआ? साक्षात्कार पूर्वक ही होता है, प्रिय हित लाभ के अर्थ में होता नहीं है। क्या हुआ भैया, सूखा था? हाँ, सूखे से मिटता नहीं है। तो उस समय बोला था इच्छा तृप्ति। इच्छा तृप्ति का मतलब ये हुआ चित्रण की तृप्ति। चित्रण की तृप्ति का मतलब ये हुआ कि जो मेरे लिए आवश्यकताएं अनिरंतर हैं, सामयिक हैं, उसको मैं स्पष्टता से पहचान जाऊं, उसके लिए श्रम पूर्वक मैं उसको कर सकता हूं, ऐसा विश्वास मेरे में आ जाए। चित्रण में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें। एक सामयिक चीजें जिनकी सामयिक जरूरत है, जब जब जरूरत हो तब चाहिए। दूसरी क्या है? निरंतर चीजें
तो मेरे अंदर विश्वास क्या बनता है? इच्छा तृप्ति कब होती है? मेरे में विश्वास बनता है कि मेरे जी में जो असामयिक चीजें हैं, जो टाइम टू टाइम वाली चीजें हैं, उनका मैं उत्पादन कर सकता हूं, उनका मैं इंतजाम कर सकता हूं, और जो निरंतर चीजें हैं उसके लिए भी मैं समय निकाल सकता हूं। तो साक्षात्कार पूर्वक, तो जब साक्षात्कार पूर्वक चित्रण होता है तो इस साक्षात्कार का नाम चिंतन भी है। समझने के क्रम में साक्षात्कार होता है। जब बोध हो जाता है तो मैं चिंतन पूर्वक जीता हूं, तो मेरा सारा चित्रण चिंतन पूर्वक हो जाता है। उसी को बोला मेरी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। उसको रहने दीजिए बस भैया, धन्यवाद। तब मेरे में तृप्ति होती है। तो संबंध में जी के तृप्ति होती है। तो संबंध में जो पहला मूल्य है, जिसको आधार मूल्य बोलते हैं, संबंध का आधार क्या चीज है? संबंध का आधार कौन सा मूल्य है? क्या चीज है? विश्वास। तो जो संपर्क और संबंध की कल हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें अब और आसानी से उसको समझ सकते हैं। विश्वास जहां होता है वहां से संबंध शुरू होता है। विश्वास नहीं है तो संपर्क की सीमा में ही है, तो हम बोलते हैं भाई छोड़ो, इन पे विश्वास मत करो, मतलब संपर्की हैं ये, माने परिभाषित नहीं है। संपर्क का मतलब परिभाषित नहीं है। अभी हम अपने परिवार में अपने को सुरक्षित क्यों ज्यादा मानते हैं? हर मानव अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां मानता है? अपने परिवार में। क्यों? क्यों? विश्वास हो चाहे ना हो, अभी तो विश्वास पता नहीं है कि नहीं है, जांचना पड़ेगा। लेकिन इतना है कि परिवार के सारे संबंध वेल डिफाइंड हैं, सुपरिभाषित हैं। वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित। तो जहां संबंध सुपरिभाषित होता है वहां हम अपने को सुरक्षा में पाते हैं। तब आगे वाली बात होगी जो पोषक भाई बोले थे। इसका मतलब ही है वहां कम से कम न्यूनतम विश्वास तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तभी तो हम साथ में एक छत के नीचे रह रहे हैं। विश्वास है तभी तो एक ही मकान में रह रहे हैं। एक ही मकान में अलग अलग कमरों में हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब विश्वास है ही है। एक मूल्य तो काम कर ही रहा कम से कम। अपना अपना जांच लीजिए। एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलमारियों में ताले बंद हैं। हाँ, जब भी बाहर जाते हैं तो हमने अपना वाला दरवाजा लॉक करके बढ़िया बड़ा वाला ताला लगा के जाते हैं। तो देखना पड़ेगा कितना विश्वास भी अभी घरों में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों प्रिया? तो जान लीजिए, जब तक विश्वास से संबंध की शुरुआत होती है, इसलिए इसको आधार मूल्य बोलते हैं। विश्वास ही गायब है तो उसको संबंध बोलें कि ना बोलें? आधार ही गायब है, बेसलेस। तो बोलते हैं ये रिलेशन बेसलेस है। बेसलेस का मतलब बेस ही विश्वास ही है। रिलेशन का बेस विश्वास ही है, यानी विश्वास गायब है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं गायब है, ठीक है, विश्वास है। परिवारों में विश्वास है, ऑफिस में विश्वास है, कंपनियों में विश्वास है, देश में विश्वास है, समाज में विश्वास है। तो सवाल यह है कि विश्वास क्या है? क्योंकि कोई चीज क्या है पहचानेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे, तभी तो जांच पाएंगे कि विश्वास है कि नहीं है। तो विश्वास क्या है? ट्रस्ट। व्हाट इज ट्रस्ट?
विश्वास की अंग्रेजी ट्रस्ट ही होती है ना। व्हाट इज ट्रस्ट? विश्वास क्या है? गुजराती में विश्वास ही बोलते हैं ना। ठीक है, आपसे ठप्पा लगवाना जरूरी है। हाँ, नहीं तो एक दो शब्द सीखने से थोड़ी हो जाएगा। केम छो सीख लिया, का जो हो छे ये सीख लिया, इससे थोड़ी काम चल जाएगा। और शब्द भी आपसे पूछते ही रहेंगे। बताइए जी, विश्वास क्या है? कहाँ पर? पीछे। तो विश्वास एक हमारी इच्छा है कि हमें वो ऐसा मिले। क्या मिले? जो हम सोच रखते हैं, क्या ऐसी सोच हमारी रखते एक अपेक्षा होती है और वो टूट जाता है, तो वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारा विश्वास टूट गया। तो इसमें विश्वास पकड़ में नहीं आया ना। विश्वास कोई चीज है, पकड़ में आ रही है? चीज नहीं है। चीज नहीं मतलब कोई वास्तविकता है कि नहीं है? वास्तविकता है। हाँ, तो क्या है वो वास्तविकता? हमारा भाव बोलते हैं कि इच्छा। हाँ, भाव ही है। विश्वास तो भाव ही है, लेकिन उस भाव को भी कैसे पकड़ा जाए, कैसे परिभाषित किया जाए विश्वास को? वो तो प्रैक्टिकली होगा तभी पता चलेगा। प्रैक्टिकली विश्वास होता है या नहीं होता है? होता है। लोग बोलते हैं जी विश्वास होता है या नहीं होता है। तो मैं पूछता विश्वास क्या होता है? अरे बोले विश्वास होता है। हमारी बोले क्या होता है? बोले होता है। हाँ जी। हेलो सर, हमारी हाँ। अपेक्षा। हाँ, हम दूसरे से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो उसके ऊपर हम भरोसा बनाए रखते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। तो विश्वास का ही दूसरा नाम भरोसा है। उससे विश्वास पकड़ में नहीं आया। चलिए और आगे। बहुत अच्छा, आपने अच्छा लेकिन डिफाइन करने की कोशिश की। अपेक्षा के संदर्भ में जो भाव है उसे विश्वास बोलेंगे। तो सारे ही भाव अपेक्षा के संदर्भ में है। सम्मान भी अपेक्षा ही है, प्यार भी अपेक्षा ही है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ, उधर माइक जी। अपेक्षा की स्वीकृतियों का भाव। अपेक्षा की स्वीकृतियां, अपेक्षाएं स्वीकृति हैं। ठीक है। हाँ जी। विश्वास एक व्यवहार में विश्वास रहता है कि मुझे किसी से कुछ अपेक्षा है या नहीं है, या मुझे एक मेरे साथ में जो व्यक्ति व्यवहार करेगा वो मेरे हित में या उसके हित में होगा या दोनों के हित में होगा, वो एक व्यवहार में ही पकड़ में आता है। तो ये तो पक्का है कि विश्वास व्यवहार में ही होता है। हेलो, व्यवहार में ही होने वाली। हाँ जी, कहाँ पर? जी। जिसके प्रति स्वीकृति है उसके प्रति विश्वास है, नहीं है उसके प्रति अविश्वास है। बढ़िया। अभी स्वीकृति को पकड़ना होगा। कौन सी सभा बहुत बढ़िया से बढ़ रही है। हाँ जी। विश्वास क्या है? आप कभी सपने में सोचे होंगे कि कोई सभा लगेगी, उसमें पूछा जाएगा विश्वास क्या है? तो एक्चुअली ये हमारे पास शब्द हैं सारे, इसका हमारे पास अर्थ नहीं है। अच्छा, अर्थ भी आ गया तो वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है क्या चीज? विश्वास नाम की चीज क्या है? इसीलिए जब जो चीज ही पकड़ में नहीं आ रही है तो फिर होगा कैसे वो? हाँ। अपेक्षाओं के निर्वाह की गारंटी। अपेक्षाओं के निर्वाह की गारंटी कहाँ कागज पे दिया जाए? नहीं, मतलब दिल से कि वो करेगा ही करेगा। हाँ, ठीक है। हाँ जी, इधर कोई? किसको माइक दिया इधर? हाँ। स्वीकृति के जो दो मानव होते हैं उनमें जो स्वीकृति है उससे विश्वास बढ़ता है। और आपने कहा कि स्वीकृति किस अर्थ में, तो सत्य के अर्थ में। बहुत बढ़िया। तो स्वीकृति ही है, विश्वास एक स्वीकृति ही है, लेकिन कौन से तरह की उस स्वीकृति को कैसे पहचाने? हाँ जी, ऑन कर लीजिए माइक। समझ और समाधान की अभिव्यक्ति ही विश्वास है। हाँ। चलिए, मतलब एकदम बिल्कुल हम पिन पॉइंट चाहते हैं, विश्वास पे ही जाके गिरना। जी। संबंधों में समझ से निश्चिंत होना। संबंध में निश्चितता। हाँ, समझ से ही होगा, बिना समझ के निश्चितता होगी नहीं। हाँ, निश्चिंतता। हाँ, समझ, संबंध में निश्चितता, निश्चिंतता। निश्चिंतता। हाँ, निश्चिंतता।
हाँ ठीक है। और संबंध में पारदर्शिता ही कहाँ पर? विश्वास है भैया। अरे इधर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ संबंध में पारदर्शिता ही विश्वास है। हाँ ठीक वो है। लॉक वाला। हाँ ठीक है। पारदर्शिता तो सारे ही को बोलते हैं, सम्मान भी पारदर्शिता ही है। हेलो बढ़िया। हेलो। हाँ जी। हेलो। जिस आप व्यवहार में कहाँ पर? यहाँ पर हाँ। जिस व्यवहार में हमको शंका नहीं है उसको विश्वास बोलते हैं। हाँ थोड़ा सा पहुँच हेलो। रहे हैं। हाँ जी। स्वीकृति और अस्वीकृति उसके बीच एक पॉइंट है, यानी कि उससे हम उस तरफ जा सकते हैं। वो पॉइंट विश्वास है, उसका कुछ आगे पता वही नहीं पॉइंट चलता। तो पूछ रहे हैं। नहीं, या यहाँ से विश्वास टूट गया तो पीछे, बढ़ गया तो आगे, तो बच्चे की कुछ विश्वास नाम की चीज है। हाँ जी। बीच। हेलो जी। दो जीवन के बीच में जो सहमति बनती है उसको विश्वास कहते हैं। दो जीवन के बीच में सहमति, ठीक है। तो दो जीवन के बीच में सहमति, बढ़िया। इसी को सम्मान भी बोलते हैं। हाँ जी। समझनी स्वीकृति એટલે જ વિશ્વાસ। समझ की स्वीकृति। समझ की। हाँ ठीक है। और व्यवहार में अपनापन। व्यवहार में अपनापन, ठीक है। प्रिया को दीजिए। हाँ जी। विश्वास में हमको कुछ भी संबंध में पहले से पता रहता है कि उसका आचरण क्या होगा, तो हम निश्चिंत रहते हैं। तो वो जो है कि हमको पहले से पता है कि वो क्या करेगा, तो हमको वो कुछ सोचना नहीं पड़ता, तो एक वो विश्वास का भाव आता है। बढ़िया। तो चाय पीते हुए भी आप विश्वास के बारे में सोचते रहिएगा। चाय पी के आएंगे तो इस पे चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि सारा मामला विश्वास का ही है, और विश्वास को आज हम सेटल करके ही निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।